کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ حضرت سیدہ ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج رات میں نے عجیب خواب دیکھا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا خواب دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، یہ تو بڑا اچھا خواب ہے، انشاءاللہ الکریم میری نور نظر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی، وہ بچہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی اور وہ میری گود میں دیے گئے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ ایک دن میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی گود میں دیا تو میرا دھیان بٹ گیا۔ پھر جب دوبارہ آپ کی جانب متوجہ ہوئی تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کی، یا نبی اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ آنسو کیسے ہیں؟ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل امین آئے تھے، انہوں نے بتایا میری امت میرے اس فرزند کو شہید کر دے گی۔ میں نے عرض کی، حسین کو؟ فرمایا ہاں، جبریل امین میرے پاس وہاں کی سرخ مٹی بھی لائے۔ بیان کردہ حدیث پاک میں جہاں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مبارک کی بشارت ہے، وہیں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم کی عطا سے یہ بھی جانتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کہ آپ نے نہ صرف ولادت کی بشارت دی بلکہ جنس کی تعیین بھی فرما دی، یعنی بتا دیا کہ لڑکا ہوگا، نیز یہ بھی فرما دیا کہ وہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں دیے جائیں گے۔ خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ مدنی مذاکرے علم و حکمت کا خزانے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے اس میں تنظیمی تربیت ملتی ہے۔ الحمدللہ اپنی گھریلو زندگی کو بہتر بنانے کے بہت سارے پیارے پیارے مدنی پھول ملتے ہیں۔ فضان مدینہ میں جب داخل ہو جاتے ہیں روح کو، قلب کو سکون محسوس ہوتا ہے، میرے سونے کی صحبت پا کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ آج باپا نے فضان اہل بیت، فضان صحابہ اور خصوصی ترغیب دلائی ہے کہ مسجد جو ہے وہ صحابہ اہل بیت آپ کا تذکرہ کیا جائے۔ ماشاءاللہ پہلی دفعہ میں فیضان مدینہ کراچی آیا ہوں، ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ ماشاءاللہ دعوت اسلامی چلا رہی ہے۔ جو چیزیں ہم گھر پہ دیکھتے تھے اور آج ہم نے جب یہاں پہ ریئل میں یہ چیزیں دیکھی تو یقین کریں کہ ہمیں اتنی بے چینی ہوئی اور ہم نے یہ سوچا کہ اتنا وقت ہم کہاں تھے اور کہاں پہ ہماری زندگی بھٹک رہی تھی۔ اصل جگہ تو یہ ہے۔ مجھے ایک مزہ آیا جب لاہور کے جو مدنی قافلے آ رہے ہیں ان کا جو جذبہ میں نے دیکھا تو یقین کرے دل مدینہ مدینہ ہو گیا۔ مدنی چینل دیکھنے کی برکت سے الحمدللہ مدنی ماحول کی برکتیں الحمدللہ مل رہی ہیں۔ جو سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں وہ ماشاءاللہ دیکھتے ہیں اور اس سے بڑا پوزیٹیو پیغام جاتا ہے ماشاءاللہ معاشرے میں ہمارے۔ آج جنت اور جہنم کے بارے میں بڑی باتیں سیکھنے کو ملی۔ آج ایک بات سیکھی اور نیت کا جذبہ ملا اور نیت کا ارادہ کیا کہ سچی توبہ، اور سچی توبہ کی بڑی برکتیں ہیں، جیسے پیر صاحب نے بھی اس پر اپنے ملفوظات عطا فرمائے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، تو نیت کی کہ انشاءاللہ سچی توبہ کریں گے اور اپنی توبہ پر انشاءاللہ قائم بھی رہیں گے۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں بھی عرض ہے کہ دعا بھی فرما دیں
اللہ کریم سچی توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ جیسے کہ امیر اللہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے غریب اسلامی بھائیوں کا ہمارے خیال کرنے کے حوالے سے فرمایا ہے، جیسے کہ ہم اپنے غریب اسلامی بھائیوں کو ہم سہولت دے سکتے ہیں کہ ان کے بجلی کا بل کے ہم ذریعے ان کی خدمت کر سکتے ہیں، کوئی الیکٹرک چیز ہم دے سکتے ہیں۔ تو یہاں بہت اچھا ماحول ملا، مدنی مذاکرہ سنا، حضرت صاحب نے کچھ مسائل کے اوپر گفتگو ہوئی، سوالات جوابات کا سلسلہ ہوا، اس کے اندر پسینے کے بارے میں سوال کیا گیا، اس کی انہوں نے وضاحت کی، تو اس سے بہت کچھ دینی علم سیکھنے کو ملا، اور انشاءاللہ آگے بھی دیکھتے رہیں گے اور سیکھتے رہیں گے۔ یہاں پہ جو سکھایا جاتا ہے دین کی تعلیم دی جاتی ہے، اور دین آپ لوگ اسپریڈ کرنا چاہیے آپ کو۔ الحمدللہ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں یہاں پہ نماز کے 7 دن کے کورس کے لیے آیا تھا، مجھے کچھ چیزیں نہیں پتہ تھی کہ پاؤں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے، کہ جو آپ اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ سیدھے قبلے کی رخ کی طرف ہونے چاہیے۔ جس انداز سے دعوت اسلامی کام کر رہی ہے الحمدللہ، میرا تو خیال ہے کوئی بھی ایسے کام نہیں کر رہا۔ اور الحمدللہ اس مدنی مذاکرے میں میرے سنت نے نیاز کے حوالے سے فرمایا، جب بھی کوئی تہوار آتا ہے تو منظم انداز سے اس کو لے کر چلتی ہے الحمدللہ۔ ہر تہوار پر، ہر موقع پر ایک نئے انداز سے دعوت اسلامی جو ہے مدنی کام کا آغاز کرتی ہے، اور جس طرح آج بزرگوں کا مدنی چینل کا آغاز کیا گیا، الحمدللہ یہ ایک دعوت اسلامی کی بہترین کاوش ہے۔ بڑا یعنی کہ دل کو سرور محسوس ہوا ہے کہ مجھے اپنے والد صاحب بھی یاد آ گئے کہ کاش میں اپنے والد صاحب کو بھی لے آتا۔ بزرگوں کو دیکھ کر دل جو ہے نا خوش ہو جائے گا۔ پیر کی شان یہ ہے کہ میرے پیر نے بزرگوں کو بھی سنبھالا ہے اور چھوٹوں کو بھی سنبھالا ہے، کہ ان کا بھی مدنی چینل بنا دیا تاکہ بچوں کے دلوں میں والدین کی محبت کو اجاگر کیا جا سکے۔ بچے اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں نہیں بلکہ بچے اپنے والدین کے قدموں میں رہ کے زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ آج ہی ہم نے مدنی مذاکرے میں FGRF کا ایک کاوش کو دیکھا کہ سولر وغیرہ انسٹال کر رہے ہیں اور اس طرح پنکھے دے رہے ہیں، تو جہاں پر مسلمانوں کو دینی فائدہ ہے دعوت اسلامی سے، وہیں پر الحمدللہ دنیا کے بھی بہت سارے فائدے اور بہت سارے شعبہ جات میں رہنمائی دعوت اسلامی کی طرف سے ہمیں۔ اور کافی ساری اسلامی بہنوں کو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر نیاز کا لنگر باقاعدہ ہوا ہے آج، تو جس طرح نیتیں لوگوں نے کی ہیں الحمدللہ ہم بھی جا کر، کل ہم چلے جائیں گے، پرسوں منڈے کو ہم بھی جا کر اپنے ملتان میں جا کر لنگر انشاءاللہ فروخی انشاءاللہ نیاز کریں گے انشاءاللہ۔ اور امیر اہل سنت کے ذریعے سے ہی صحابہ اور اہل بیت کی محبت نصیب ہوئی ہے، اور آج امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں جو کل بھی ترغیب دلائی تھی خصوصی مدنی مذاکرے میں، اور آج جو مدنی مذاکرہ ہوا ہے لائیو، اس میں بھی پیر صاحب نے ترغیب دلائی ہے کہ نیاز فاروقی کا جو اہتمام کیا جائے، کہ آپ ان کی جو زندگی کے جو 63 سال ہیں، آپ اس کی نسبت سے آپ 63 پیک بنا کے تو آپ جو لوگوں کو، اسلام بھائیوں کو تقسیم کریں، اس سے جو ہے نا لوگوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بڑھے گی۔ حضرت عمر فاروق ہماری جان ہے، ہم ان کے غلام ہیں، اور انشاءاللہ ان کے حوالے سے انشاءاللہ جو امیر علیہ سنت نے ترکیب دی ہے اس حوالے سے ہم نیاز بھی کریں گے۔ ہمارا جو گاؤں ہے وہاں پہ جا کر لوگوں کو جو ہے وہ دین کی دعوت دیں گے، اور اپنی اور دوسرے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دینی کام سے دوری اختیار ہو گئی تھی، تو اب کچھ نہ کچھ وقت ایسا شیڈول بنائیں گے کہ دین کے کام کے لیے وقف کریں۔ تو میں تمام اسلامی بھائیوں کو یہ پیغام دوں گا، آپ بھی محرم الحرام میں جو یہ مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں ان کے ساتھ سفر کریں۔ میری بھی نیت ہے انشاءاللہ نظر و نیاز کا سلسلہ بھی کریں گے انشاءاللہ، محرم الحرام میں عاشورہ کے مدنی قافلے میں سفر بھی کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایسے شیخ کامل کے ساتھ وابستہ ہیں، اپنے پیر سے وابستہ ہیں جنہوں نے ہمیں صحابہ اور اہل بیت کا بہادر بنایا ہے۔ ہم نے مدنی مذاکرہ بھی دیکھا، اور جیسا کہ پیر صاحب نے حرام اس کے بارے میں فرمایا یہ بھی نہیں تھا پتہ، اور دیگر جو سوالات وغیرہ ہیں بہت مزہ آیا۔ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو تجربات سے، مشاہدات سے امیر اہل سنت کے پتہ چلا۔ خاص طور پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو فرض علوم ہیں جن کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، بہت ساری کتابیں پڑھنے کے بعد بھی وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی جو امیر اہل سنت کی صحبت سے الحمدللہ یہاں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ دین کی جدت کے بارے میں اور دین میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے اس بارے میں کافی رہنمائی کی۔ امیر اہل سنت نے جس طرح فرض علوم پر توجہ دلائی، عقائد کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے اصلاح فرمائی، طلبہ کرام کو بھی اس حوالے سے بہت جذبہ ملا۔ اور اسی طرح خلفائے راشدین کی محبت، اور بالخصوص سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم کو منانے کے لیے، آپ کی نیاز کا اہتمام کرنے کے لیے جو آپ نے اہداف دیے ہیں اس کا اہتمام کریں گے۔ دل کو سکون ملا کر ادھر امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہر ہفتے کو اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھیں گے اور مدنی قافلہ بھی کریں گے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے کہ جب تک یہ زندگی ہے دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ منسلک ہمیں رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد میں سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا یہ زیادہ اچھا ہے. تو بہرحال یہ کہ نیت کرنے کے بعد جب تک آپ مسجد میں رہیں گے یہ مفت کا ثواب ہاتھ آئے گا، تو اس لیے وہ اعتکاف کی نیت ضرور کر لینی چاہیے. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد ہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا مینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تھی، افطار کا وقت آ گیا، مسجد میں افطار نہیں کر سکتے. ہاں نیت کر لیجئے اعتکاف کی، اب بے شک افطار بھی کر لیں. تاہم مناسب یہ کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے، کچھ ذکر و درود کر لیا جائے، چاہیں تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ 1446 کے اسلامی سال کی شروعات ہو گئی. 1446 1446 اسلامی سال 1446 آج شروع ہو گیا. تو پہلا مہینہ محرم شریف اور اس کی آج چاند رات. تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو 1446 سنہ ہجری کا آغاز مبارک ہو. تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو نیا اسلامی سال 1446 سنہ ہجری کا آغاز مبارک ہو. تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو نئے اسلامی سال 1446 سنہ ہجری کا آغاز مبارک ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 2 سے آج کی پہلی محرم کی مناسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر پہلا. جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے میں تشریف لانے والے سارے بھائی کچھ تو اچھی نیتیں بھی کر لیں. اچھی نیتیں جتنی زیادہ ہوتی ہیں اتنا ثواب بڑھتا ہے. تو جو دل میں نیت دل قبول کرے وہ نیتیں کرنی ہوتی ہیں. ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر اور دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ رب العزت کی رضا ان خوشنودی کے لیے توجہ کے ساتھ دینی باتیں سنوں گا. جب جب صلو علی الحبیب سنوں گا بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا. مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک یعنی صلاۃ والسلام وغیرہ کے بعد ہی اٹھوں گا.
मदनी मुज़ाकरा ख़त्म होने के बाद आगे बढ़ के इस्लामी भाइयों से सलाम और मुसाफा करूँगा, ना हाथ वगैरह मिलाऊंगा, और जो मेरे लिए नए होंगे उन्हें भी आइंदा तशरीफ लाते रहने की दावत पेश करूँगा, और दीगर मदनी काफ़िले वगैरह भी मौके की मुनासबत से इनको दावतें दूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरा शुरू हो चुका। अब सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बेसवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश करूँगा, भूल करता पाए फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाए। मुझे आए बाएं शाये करता, अपने कहे पर बिला वजह कायम रहता नहीं, बल्कि भूल होने की सूरत में शुक्रिया के साथ कबूल करता पाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अब्दुल खालिक अत्तारी वा कैंट से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे मुर्शिद की बारगाह में सवाल अर्ज है कि इज्जत किसे कहते हैं और इसका मयार क्या है, क्योंकि बाज़ लोग गुनाह करने के बाद भी कहते हैं जी अल्लाह ने बड़ी इज्जत दे रखी होती है, और वो गुनाह के काम की तारीफ भी कर रहे होते हैं और साथ में अपनी इज्जत का इजहार भी कर रहे होते हैं। तो ये इरशाद फरमाइए कि अल्लाह रसूल के नज़दीक इज्जत क्या है, इज्जत का मयार क्या है, और जो लोग इस तरह की बात करते हैं उसके हवाले से भी कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाएं। इज्जत एक एहतराम और एक नेक नामी और एक मतलब अच्छा किसी के बारे में सोचा जाना, वह इज्जत की प्रॉपर तारीफ मुझे मालूम नहीं है, याद नहीं मुझे। तो यानी कि वैसे आम तौर पर आम हालात में इज्जत का पता चलता है कि इसको मतलब इन्हें इज्जत मिली है और ये मतलब इन्हें बदनाम है जिसको इज्जत नहीं मिली। लेकिन हकीकत में इज्जत वही इज्जत है जो रब की रज़ा के साथ हो। जैसे कि हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहबी रसूल थे, अज़ान के लिए जब काबे शरीफ की छत पर तशरीफ़ ले गए और इन्होंने अज़ान पुकारी, तब चूँकि इस्लाम का नया नया दौर था, तो बाज़ जो सरदार थे जिसको हम शख्सियात बोलते हैं, हर साहबी बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन इनमें भी सरदार वगैरह। फतह मक्का के जब मक्का मुकर्रमा फतह हो गया तो उस वक्त अजान के लिए बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु काबे की छत पर बहुक्म मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। तो बाज़ों के जहन में आया कि बड़े सरदार वगैरह जो मुसलमान हुए थे, वे नए नए मुसलमान थे ना, कि ये तो एक गुलाम थे ना, और कलर जो था ऐसा था कि दुनिया भर के नूरानी चेहरे वाले इनकी खैरात मांगे। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ समझ गए होंगे। तो जो आपका रंग मुबारक था, तो इस पर इस पर एक रिवायत के मुताबिक यह आयत मुबारक नाजिल हुई, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि बेशक तुम में अल्लाह के नज़दीक ज्यादा इज्जत वाला वही है जो ज्यादा परहेजगार है। अत्का ज्यादा परहेजगार, ज्यादा मुत्तकी। तो असल इज्जत वही है कि यूं तो सबको अल्लाह ही देता है जो देता है, तो वो खुसूसियत के साथ जिसको अल्लाह पाक नेक नामी और इज्जत से सरफराज करता है, लोगों के दिलों में जिसकी इज्जत डाल देता है, तो वो हकीकी इज्जत वो है। और जो दुनिया में भी इज्जत मिलती है, और दुनिया भी इज्जत का एतबार है नहीं। अरबाब इक़्तिदार को इज्जत मिलती है, सियासी लीडरों को इज्जत मिलती है, और जो भी है ना कि बड़ी पार्टी होती है, चाहे मतलब वो सूद का ढेर लगा हुआ है और रिश्वत के बगैर वो कदम नहीं उठाता, कि माल बहुत है, इसको भी लोग इज्जत देते हैं, इज्जत मिलती है। ये इज्जतें जो है ना, ये आखिरत में महंगी पड़ेंगी। जो दुनियावी इज्जतें जो गुनाहों के जरिए हासिल होती है, कई इज्जतें ऐसी होती है जो गुनाहों के जरिए नहीं मिलती, वैसे ही मिल जाती है, वो दूसरी चीज़ है। लेकिन है नेमत, इज्जत मिलना ये नेमत है, और हर नेमत के बारे में क़यामत के दिन सवाल तो है।
लेकिन हकीकी इज्जत जो है ना, इसका ताल्लुक ना माल से है, ना दौलत से है, ना उसको जमाल से है। जैसा भी हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या हुआ है ना, बयान हुआ, इनको जो हकीकी इज्जत मिली, और ऐसी इज्जत मिली कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ के लिए तशरीफ ले गए तो हजरत बिलाल के कदमों की आवाज़ अपने आगे आगे सुनी जन्नत में, वो भी जन्नत में। तो फिर जब पूछा हजरत बिलाल को कि तुम्हारा अमल, तो अर्ज़ किया कि मैं जब भी बेवुज़ू होता हूँ वज़ू कर लेता हूँ, और वज़ू कर लेता हूँ तो 2 रकात तहियतुल वज़ू अदा करता हूँ। तो ये मशहूर वाक़यात हैं इस तरह के। तो अब तहियतुल वज़ू पढ़नी चाहिए, लेकिन इसके फिर मौक़े होते हैं, मकरू वक्त भी ना हो। और भी सूरतें हैं, जैसे फजर की सुन्नतें आपने पढ़ी, अब फजर के फ़र्ज़ पढ़ने या वज़ू, तो अब ये फजर की सुन्नतों के बाद तहियतुल वज़ू नहीं पढ़ सकते, ये नफ़ल है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए, तहियतुल वज़ू इज़ तहियतुल वज़ू, तो हर वक्त पढ़ना है तो ये नहीं है। हर एक के अपने अपने मतलब फ्रेम होती है, उसी फ्रेम में रहना होता है। हर मसले की एक मखसूस मतलब वो तहदीद होती है, और उसकी यही मैंने फ्रेम से आपको मिसाल दी कि उस बाउंड्री से बाहर नहीं निकलना होता, तो सूरतें बनती हैं। खैर, तो यूँ मतलब है कि अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी अपने बंदों को, नेक बंदों को नेकी की वजह से इज़्ज़त मिलती है। हालांकि पास पैसा नहीं होता, लेकिन इज़्ज़त ऐसी होती है कि जिनके बाल बिखरे होते हैं, अरे कोई इनको अपने दरवाजे पर खड़ा नहीं रखता, वो बात करें तो कोई सुनता नहीं है, पूछता नहीं है। लेकिन ये वो लोग होते हैं कि अगर खुदा पर कसम खा लें तो अल्लाह पाक उनकी कसम पूरी कर देता है। तो ये भी औलिया किराम की अक़साम है कि ज़ाहिरी तौर पर इनको कोई न पाई, न पैसा, न मतलब कोई लुगड़े कपड़े लत्ते इस तरह के कोई ज़ाहिरी इम्प्रेशन टिप टाप कुछ भी नहीं, बाल भी बिखरे हुए, ये मिसाल दी है। तो और लेकिन ये औलिया किराम होते हैं, पहुँचे हुए लोग होते हैं, तो ये इज़्ज़त वाले लोग हैं। और इनकी इज़्ज़तें दुनिया में जो भी अंदाज हो, आखिरत की इनकी इज़्ज़त वो होगी कि लोग इनसे शफात की खैरात मांग रहे होंगे, कि जिन पर इनकी नज़र पड़ेगी उनकी शफात हो जाए और उनकी बख्शिश हो जाए। जिन्होंने दुनिया में इनकी खिदमत की, यहाँ तक कि उलमा को अगर लोग उलमा को पकड़ेंगे, ऐसे ये उलमा की उस वक्त मिन्नतें करेंगे कि अब आप जा रहे हो तो मुझे भी ले जाइएगा, और उलमा इकराम शफाअतें करेंगे। आज मौलाना मौलवी अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये क़यामत के दिन पता चलेगा कि जिसके सीने में इल्म दीन है उसका मकाम क्या है। हाँ, जिनको आज अच्छे नहीं लगते, जो बुरा भला कहते हैं, तो वो तो खैर अपने ईमानों की भी खैर मनाए। ख़तरा होता है इसमें कि अगर किसी आलिम दीन को इसलिए तौहीन करता है आलिम दीन की कि इसके पास इल्म दीन है, बस सबब इल्म दीन, तौहीन करने की वजह जो है वो इल्म दीन हो, तो इस वजह से किसी आलिम की तौहीन करे वो तो काफिर हो जाएगा, इस्लाम से निकल जाएगा, निकाह भी उसका टूट जाएगा। तो ये अभी अड़ाउड़ी करे कोई तो करता रहे, मतलब कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ये इस्लाम का कानून है, ये कैसे हो सकता है कि मतलब कलमा पढ़ लिया तो अब आप जो चाहो कहते रहो, आपको खुली छुट्टी तो एक गांव के अंदर भी नहीं होती, गांव के भी कानून होते हैं, चौधरी साहब पकड़ के कचहरी में खड़ा कर देते हैं। कबीले में भी नहीं होती, कबीले के जो सरदार या जो भी वडेरे वगैरह होते हैं ये चलाते हैं ना, मतलब इनका अपना कानून, वो सजाएं दे रहे होते हैं। मुल्क के अपने कवानीन होते हैं। आप बोलोगे मैं अब हूँ पाकिस्तानी तो जो चाहूँ करूँ, कैसे करोगे? कानून का जो है ना वो कोड़ा बुलंद है, हंटर पड़ेगा, कानून थोड़ा तो है ना सब। ये बातें वो जो अक्ल में आती हैं, तो खाली इस्लाम रह गया था कि आपने कबूल कर लिया, जो चाहो बकते रहो, जो चाहो बोलते रहो, कभी अल्लाह के बारे में उल्टी सीधी बात कर लो, कभी नबी के बारे में कर दो, कभी सहाबा के बारे में कर दो, कभी अहले बैत के बारे में कर दो। नहीं, जबान पर लगाम है, जिसके पास इस्लाम है उसके जबान पर लगाम। ये हर बात नहीं करने की इजाजत, न हर बात कर सकते हैं, न हर काम कर सकते हैं। इस्लाम के दायरे में रहकर ही करना होगा, वरना इस्लाम का जो भी कानून है वो हरकत में आएगा और आप कहीं के नहीं रहोगे। अल्लाह हमको इस्लाम के तमाम अहकाम पर अमल करने की सआदत बख्शे और हमारा ईमान सलामत रखे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد تحیت الوضو نہیں پڑھ سکتے یا سنتیں پڑھنے کے بعد نہیں پڑھ سکتے؟ سمجھا نہیں. تحیت الوضو جو پڑھیں گے. تحیت الوضو. جی. تحیت الوضو کا یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جب وضو کرے تو اعضاء وضو میں کچھ تری باقی ہو تو اس حال میں یہ پڑھے اور مکروہ وقت بھی نہ ہو. جن اوقات میں نفل منع ان میں تو نہیں پڑے گا, تو ان کا قائم مقام وہ تو تحیت المسجد کا ہے. جی, یعنی اگر فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اب تو ہاں فجر کا وقت اگر شروع ہو گیا, صبح صادق ہو گئی, تحیت الوضو جو ہے اگر صبح صادق کے بعد یعنی فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد کسی نے پڑھ بھی لی تحیت المسجد تو تحیت الوضو یا تحیت المسجد کی نیت کر بھی لی, تب بھی ان کے یہ نفل نہیں ہوں گے, بلکہ یہ نفل جو ہیں سنت فجر کے قائم مقام ہو جائیں گے, سنت فجر مانے جائیں گے, یہ وہ نفل نہیں مانے جائیں گے. کیا رات کو نفل پڑھنے کے تعلق سے بھی ایسا ہی کو حکم ہے کہ اگر اس نے پڑھنا شروع کیا جائے تہجد ہو یا صلاۃ اللیل ہو اور اس نے نفل شروع کی اور نفل شروع کرنے کے بعد اگر فجر کا وقت شروع ہو گیا اور اسی دوران اگر اس کے نفل جاری ہیں تو کیا اس کا بھی کچھ اسی طرح کا حکم ہے؟ اگر تو ایک رکعت وہ پڑھ چکا ہے, دوسری رکعت میں ہے اور اب فجر کا وقت شروع ہوا تو یہ قائم مقام نہیں ہوں گے سنت فجر کے. ہاں اگر ایک رکعت بھی نہیں پڑھی تھی اس نے اور فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اس صورت میں یہ فجر کی سنتوں کے قائم مقام ہو جائیں گے. پہلی رکعت کے دونوں سجدے پورے کر لے. جی, یعنی ایک رکعت پڑھ لے. پوری ہو گئی نا. جی. تو اب اگر فجر کا وقت شروع ہو گیا تو نفل ہو جائیں گے, تہجد ہے تو وہ بھی ہو جائے گی. اور اگر دو سجدوں سے پہلے ہی صبح صادق ہو گئی تو اب یہ کہ وہ تہجد نہیں ہوں گے بلکہ یہ سنت فجر مانے جائیں گے, پوری کر لے. مطلب جب حضور اسی طرح اگر کسی نے وتر ادا نہیں کیے عشاء کے اور اس نے ایسے موقع پر وتر کی نیت باندھی کہ ابھی رات باقی ہے اور وتر کی نیت باندھتے ہی اور وتر شروع کرتے ہی فجر کا وقت شروع ہو گیا, تو ایسی صورت میں کیا اس کے وتر ہو جائیں گے یا اس کا بھی کوئی شرعی حکم ہے؟ وتر میں یہ رعایت ہے کہ اگر صبح صادق سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ لی اللہ اکبر کر کے شروع کیا, اب رات ختم ہو گئی, فجر کا وقت شروع ہو گیا, تو وتر پورے کر لے, ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کی طرف سے امیر اہل سنت کو اور مدنی چینل کی ساری ٹیم کو اور تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جو رات کو سورہ ملک پڑھنے کی فضیلت ہے, اگر وہ سورہ ملک ہم نفلوں میں پڑھ لیں تو کیا وہ فضیلتیں حاصل ہوں گی؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. سورت الملک نفلوں میں پڑھ لی ہے یہ تو فضیلت حاصل ہوگی, بلکہ بظاہر تو لگتا ہے ثواب بڑھ جائے. اب پڑھنا ہے نا. ہاں جو ہمارے نیک اعمال میں سورت الملک سنتے ہیں مل جل کے, سننا ثواب کا کام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن چونکہ حدیث پاک میں پڑھنا لکھا ہے تو اس لیے ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ حدیث پر عمل ہو گیا اور وہی فضیلت حاصل ہو گئی, بلکہ بے شک مل کے سنیں آپ سورۃ الملک, لیکن زبانی بھی پڑھ لیں. وہ نیک عمل تو مانا جاتا ہے, نیک اعمال جو عیسائی بھائیوں کے لیے 72 ہیں ان میں یہ تنظیمی طور پر کہ ہو گیا چلو نیک عمل پر عمل, لیکن یہ ساتھ میں وہ پڑھ لے گا تو وہ حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آج کو شعبہ آنے والا تھا جی, عشر. ماشاء اللہ. اور وہ لاہور سے بھی ٹرین مدنی ڈونیشن جی ہاں باکس والے بھی تشریف لائے تھے, ڈونیشن گھریلو صدقات باکس والے, ڈونیشن باکس والے اور عشر والے اسلامی بھائی, اور پھر لاہور سے بھی ٹرین نے آج کراچی پہنچ تو گئے ہیں. اچھا. اب یہ یہاں تک پہنچے نہیں پہنچے پتہ نہیں ہے. ٹرین بھی پہنچ گئی ہے. ٹرین بھی پہنچ گئی, آواز آ رہی ہے. سبحان اللہ. یعنی وہ داتا ایکسپریس شعبہ عشر اور داتا ایکسپریس
कुछ नाम तो लिया था इन लोगों ने भी, जी दाता एक्सप्रेस दाता एक्सप्रेस, लाहौर से चलना था। माशाअल्लाह, सबको जी आया नू, सबको मुबारकबाद, तशरीफ आवरी का शुक्रिया, वेलकम, मोस्ट वेलकम। उशर वालों की जो तादाद मुझे अभी मिली है, फारूक भाई जो रुकन शूरा हैं इनके 7,130 7,130 इस्लामी भाइयों की तादाद अभी इनकी तरफ से आई है। और तय्युल अर्ज की एक करामत आपने सुनी होगी, एक करामत एक शोभा है। मैं सोच रहा था सारे यार हॉल में समा गए, कमाल है यार। असल में सारे हॉल में अभी हों ये जरूरी नहीं है ना। अल्लाह जल्ला जलालुहु। तय्युल अर्ज की मैं वजाहत कर दूं जी कि ये भी करामत एक शोभा है, यानी थोड़े से वक्त में ज्यादा जमीन को तय कर लेना। ने औलिया किराम के वाकयात है ना कि कदम उठाया और कहीं के कहीं पहुंच गए, कदम उठाया मक्का पाक में हाजिरी है, कदम उठाया मदीना तैयबा पहुंच गए, बगदाद शरीफ पहुंच गए। ये वाकयात हैं बुजुर्गों के, तो इसको तय्युल अर्ज कहते हैं, तय्युल अर्द दौत। तो यानी जमीन का सिमट जाना, तो जमीन इनके लिए औलिया किराम के लिए सिमट जाती है। अब ये हर वली के लिए सिमटे, जरूरी औलिया किराम की भी कई अक़साम है, तो इनमें मतलब ये भी एक किस्म है करामत की। मोहम्मद मसूद अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ कराची से। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, क्या पहली तारीख को सूरह मुल्क पढ़ने की कोई ख़ास फजीलत है? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। चांद रात को अगर सूरतुल मुल्क पढ़ लें, 30 आयतें इसकी, ये लिखा है कि चांद देखकर, इससे मुराद पता नहीं चांद रात ही है या क्या है, कि चांद देखकर सूरह मुल्क पढ़ ले तो इसकी 30 आयतें, तो 30 दिन जो है ना वो खैर व बरकत या गुनाहों से बलाओं से, हाँ 30 आयतें इसमें, तो 30 दिन नहीं पूरा महीना जो है बलाओं से हिफाजत रहती है। तो समझने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, अगर 29 का चांद जैसे होता है, वो बंदा चांद देख 29 का चांद जैसे हो और चांद देखकर वो पढ़ने की कोशिश करे, तो अव्वल तो 29 का चांद उसके लिए देखना आजमाइश। अब 29 का चांद देखते देखते ये देख के पढ़े तो 29 का चांद इतनी देर तक रुके, ये तो क्या ये चांद देखते देखते पढ़ना है, या चांद अभी देख लिया अब रात के किसी हिस्से में पढ़ना है, या कोई अभी पढ़ना चाहता हो आपके बयान फरमाने के बाद वो जाकर खिड़की में पहले चांद देख ले और फिर को पढ़े, तो मतलब किसकी कुछ अगर वजाहत हो जाए ताकि आज की रात पढ़ने का मज़ीद रग़बत और जज्बा हो। अब ये पता नहीं कि हदीस पाक है, बुजुर्गों का कौल है ना, बुजुर्गों का कौल, तो बुजुर्गों का कौल है, तो अब कयास करें तो समझ में यही आता है कि सारी रात में जब भी पढ़े चांद देखकर, तो है ना चांद देखकर रोज़ा रखो, चांद देखकर इफ्तार करो, ये हदीस पाक है ना, तो इसमें चांद देखकर रोज़ा रखो, चांद देखकर इफ्तार करो, तो इससे पूरा महीना इसमें तो चांद देखकर चांद की रूयत पर रोज़ा रखो, चांद की रूयत पर ही रोज़ा छोड़ो, यानी ईद करो, तो ईद मना लो। और अब रोजे पूरे हो गए तुम्हारे 30 या 29 जो भी चांद, तो चांद देखने जब 30 की भी गुंजाइश है, तो एक रात की गुंजाइश बुजुर्गों के कौल में कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि चांद देखते देखते चांद देखकर पढ़ने भी बैठेगा तो मगरिब की नमाज का क्या होगा, मगरिब भी तो पढ़नी है ना, तो इसलिए वो रात भर में पढ़ ले, ये ऐसे आइडिया। अब चूंकि बुजुर्गों का कौल है, हदीस पाक की शरह अपनी अटकल से अपने आइडिया से करना हराम है, ये ध्यान में रखिएगा। शुरुआत जो अहल है वो शरह करेगा, और अहल नहीं है तो जो जिन अहलों ने, जो शारहीन जो हैं, जो अहल थे इसके जिन्होंने शरह की है, तो उनकी शरह बयान की जाएगी और उसी को फॉलो किया जाएगा। अपनी मर्जी से हदीसों के माना और चूँकि चुनाचे और ये नहीं इजाज़त, ना आयत मुबारक की इजाज़त, बल्कि कुरान की तफसीर या हदीस की शरह किसी ने जो अहल नहीं था उसने अपनी आइडिया से की, और अगर दुरुस्त हुई तब भी गुनाहगार है, तब भी हराम है। इसने किया क्यों ये काम, तो करने इसका मैटर ही नहीं है, फील्ड ही नहीं इसका, ये नहीं करे। अब देखो आजकल तो चारों तरफ ये लगे हुए हैं
और हदीसों के और आयतों के माना निकाल कर और अपनी मर्जी के लोगों को समझा रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर खास करके। तो भाई ये सुना भी नहीं करो। सिर्फ उलमा अहले सुन्नत जो मुस्तनद सुन्नी आलिम होते हैं, बस उनकी बात सुननी और माननी है। बाकी ये चलते फिरते पुर्जे कई लगे हुए हैं मुसलमानों को गुमराह करने के लिए। तौबा तौबा, अल्लाह पाक हम सबका ईमान सलामत रखे। चूँकि आज कसीर ईसाई भाई मस्जिद में तशरीफ लाए हैं, 3 दिन के लिए इनकी तशरीफ आवरी होती है। आमतौर पर ये ट्रेन और ये जो कुछ रुक भी जाते हैं आखिर तक, तो रहना मस्जिद में होता है, तो कुछ मस्जिद के आदाब भी सुन लेते हैं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में हंसना कब्र में अंधेरा लाता है। यहाँ तक हदीस पाक पूरी हुई और बाद में लिखा है हाँ ज़रूरतन मुस्कुराने में हरज नहीं है। हंसना ज़िहक, हंसना उसको कहते हैं जिसकी इतनी आवाज़ हो कि खुद सुनी दूसरे ना सुने, तो ये हंसना कहलाता है। और मुस्कुराना ये कि दांत जाहिर हुए, होंठ फैले जैसे, तो ये तबस्सुम या मुस्कुराना कहलाता है। ये मस्जिद में इसमें कोई हरज नहीं है। और कहा यानी हा 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 करके हंसते हैं, या इतनी आवाज से हंसा कि दूसरा होता तो भी सुन लेता, ये कहका कहलाता है। चाहे एक ने सुना, चाहे 100 ने सुना, चाहे किसी ने नहीं सुना, मगर आवाज इतनी निकली थी कि कम से कम एक बंदा भी होता तो वो सुन लेता, तो कहका ही है, चाहे कोई नहीं है। तो कहका प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं लगाया, इस सुन्नत से साबित नहीं है। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं, जो मस्जिद में दुनिया की बात करे अल्लाह पाक उसके 40 बरस के नेक आमाल अकारत यानी बर्बाद फरमा दे। मुंह में बदबू होने की हालत में घर में पड़ी जाने वाली नमाज भी मकरूह है, और ऐसी हालत में यानी मुंह या कपड़ों या बदन से पसीने या किसी भी तरह की बदबू आने की हालत में मस्जिद में जाना हराम है। मस्जिद में रिक वाइंड खारिज करना मना है। मस्जिद में ऐसे बच्चों को पेम्पर बांध कर भी लाना गुनाह है जिनके बारे में गालिब गुमान हो कि पेशाब वगैरह कर देंगे या शोर मचाएंगे। मस्जिद में पागलों को या उन आसेब जदों को जिनको असरात होते हैं, जो उछल कूद वगैरह करते हों, ऐसे मरीजों को जिनकी वजह से लोगों को घिन आती हो, लाना गुनाह है। और उन समझदार बच्चों को लाना भी गुनाह है जो वहां भागम भाग करते और शोर मचाते हैं और नमाजियों के लिए परेशानी का बाइस बनते हैं। फर्श मस्जिद पर लोगों के गिरे पड़े बाल या हल्का फुल्का कचरा डालने के लिए हो सके तो एक शापर जेब में रख लीजिए। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मस्जिद से तकलीफ देने वाली चीज निकालेगा अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। पसीने और मुंह की राल वगैरह से मस्जिद के फर्श, दरी या कारपेट को बचाने के लिए जब भी मस्जिद में सोए अपनी जाती चादर वगैरह पर ही सोएं। मस्जिद में अगर खस यानी मामूली सातिन का या जर्रा भी फेंका जाए तो उससे मस्जिद को इस कदर तकलीफ पहुंचती है जैसे इंसान को अपनी आंख में मामूली जर्रा पड़ जाने से होती है। तो मसलन कपड़े में कोई चीज लगी हुई है, बाल आ गया या कोई धागा, तो ये मस्जिद में फेंकना नहीं है बल्कि अपनी जेब में डाल लें। ये शाप पर रखी तो उस पर डाल लें। आज़ाए वजू से वजू के पानी के कतरे फर्श मस्जिद यानी मस्जिद की जमीन पर गिराना नाजायज और गुनाह। अलबत्ता फिनाए मस्जिद में कतरे टपकाने का ये हुक्म नहीं। यानी मस्जिद से मुत्तसिल मिली हुई जो जगह होती हैं मस्जिद की ज़रूरियात के लिए वो फिनाए मस्जिद कहलाती है। उसमें अगर वजू के पानी के कतरे टपके तो कोई हरज नहीं। मस्जिद की दरियों और कारपेट वगैरह के धागे और चटाइयों के तिनके नोचने से परहेज कीजिए। हर जगह मसलन किसी के घर या कहीं महफिल वगैरह में जाएं तब भी
बल्कि अपने घर में भी इस बात का ख्याल रखिए कि ज़ाहिर धागे नोचेंगे, तिनके तोड़ेंगे तो उस चीज़ को नुकसान पहुँचेगा, जो क्वालिटी बी हो जाएगी। ए क्वालिटी का था भी तो अभी वो उसकी कीमत ही ना रही। तो अपने घर में भी एहतियात करनी है, मस्जिद में हर जगह एहतियात करनी है कि अपनी चीज़ों को या किसी की चीज़ों को नुकसान ना पहुँचाए। दूसरों की चीज़ों को नुकसान पहुँचाएंगे तो फिर हुकूकुल इबाद के मसाइल भी पेश आएंगे। दूसरों का हक तलफ करना, हक ज़ाया करना, इसके अहकाम भी फिर सख्त होते हैं कि इससे माफ़ी मांग ले या इसकी जो नुकसान पहुँचाया है उसको पेमेंट करे, वो माफ़ कर दे तो माफ़ हो जाएगा। और ले अगर वाकई यानी कि कीमत में कमी तो आएगी चीज़ की, तो इसलिए वो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। मस्जिद में दौड़ना या जोर से कदम रखना जिससे आवाज़ पैदा हो मना है। मस्जिद के फर्श पर कोई चीज़ जोर से ना फेंकी जाए और चादर या रुमाल वगैरह से फर्श इस तरह ना जाने कि आवाज़ पैदा हो। मस्जिद की सफाई करने वालों को बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। तिलावत और नात, तिलावत और नात व इजाज़त शरई किए जाने वाले एलानात वगैरह की इतनी बुलंद आवाज़ ना हो जिससे किसी नमाजी को तशवीश हो या सोते को ईजा पहुंचे। मस्जिद में नारे लगाने और माइक इस्तेमाल करने में सख्त एहतियात की जरूरत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया के ज़रिए सवालात का सिलसिला है। ये सवाल कह रहे हैं कि क्या कोई बुज़ुर्ग किसी गैर महरम औरत को शाबाश या हौसला अफजाई के लिए सर पर हाथ रख सकता है? औरत ने दुपट्टा भी लिया हुआ हो तो इस हवाले से रहनुमाई इरशाद फरमाएं। और अगर औरत खुद बच रही हो और फिर भी गैर महरम मर्द औरत के सर पर हाथ रख दे तो इस सूरत में गुनाहगार कौन होगा? जी, यानी बाज़ औक़ात बुजुर्गों के सामने वो औरत यूं सर झुकाती है कि हाथ रख दो। अब दादा जान हैं इनके अपने महरम हैं, वालिद हैं, तो भले रखे। अब गैर है तो वो इससे बचे। ये तो आजमाइश हम जैसों में पड़ती है, एयरपोर्ट पर खास करके। यहाँ तो कोई ज़ाहिर है कि नहीं आ सकता, नहीं आ सकती, तो अब मैं तो बचता हूँ। अब वहाँ तो खुली फजा होती है, खुला कांटा होता है, खुले इख्तियारात होते हैं। जिसको समझ आती है वो सेल्फी बना रहे हैं, चलते चलते यूं बना के सेल्फी गुजर जाएंगे, पता भी नहीं कौन है, चल रहा होता। तो खैर, तो औरतों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, गैर मर्दों से इतना करीब जाना। भले ना बूढ़ा है तो क्या हुआ, बूढ़ा कोई खतरा प्रूफ तो नहीं है, शैतान प्रूफ तो नहीं है ना, आप शैतान प्रूफ है। तो दूर दूरी, आग और पानी को दूर रहने में ही आफियत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये वैसे ये जो आपने अभी इरशाद फरमाया है, इसके ताल्लुक़ से यही है कि जो बाज़ औक़ात चूँकि अब इतना मॉडर्न दौर हो चुका है कि औरतें ख़ुद ही अपना सर लेकर आगे बढ़ जाती हैं, तो गैर महरूमा के आगे जो इस तरह का बढ़ जाता है सर, ये भी। और जैसे अभी आपने फरमाया ना कि सेल्फ़ी का, तो अब इसमें क्या होता है कि बाज़ औक़ात इस्लाम वो जो खातून होती है औरत, वो तो नहीं आती, इनका जो भी महरम होता है, भाई होता है, शौहर होता है, वो सेल्फ़ी के लिए आ जाता है और तस्वीर खींचने के लिए अपनी बीवी को दे देता है। अब अपने यूँ खड़े हो जाए ना, इसकी बीवी सामने तो फ़ोटो खींचे, तो ये सारे मसाइल भी होते हैं। तो औरत को जो एहतियातें करनी है, औरत को ख़ुद को बचाना है। जब औरतों को पता होता है कि ये मर्दों से दूर रहते हैं, या एक मज़हबी आदमी जो एक नेक और मज़हबी लोग होंगे वो गैर औरतों से बचते हैं। जो नेक लोग होते हैं, मज़हबी रिलीजियस पर्सन जिसको आप कहते हैं, जो कुरान और हदीस का बयान करते हैं, इस्लाम और दीन की बातें बयान करते हैं ना, ये याद रख लें कि ये वो लोग होते हैं, ये लोग अजनबी औरतों से दूर रहते हैं, अजनबी औरतों से बचते हैं। गैर महरम औरतें आप जिसको कहते हैं, इससे बचते हैं। जो इनमें घुस जाते हैं, इसमें इनको साथ बिठाते हैं या फिर इस तरह काम करते हैं, तो वो फिर बस अल्लाह पाक इनको भी हिदायत दे
تو اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو غیر مردوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں، اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ یا بھائی کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو اس طرح مطلب کہ ان کی بھی تربیت کریں. کیا فرماتے ہیں آپ نے فرما دیا، میں تائید کرتا ہوں. جزاک اللہ خیرہ. صحیح بات ہے بالکل. نہ آگ اور پانی کو دور ہی رہنا چاہیے. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، وقت یہ نہیں کہ بڑی آزمائش ہے، ہم لوگوں کے لیے بڑی آزمائش بعض اوقات ہو جاتی ہے. کیا کر سکتا ہے آدمی؟ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو ظاہر بچائے، اور کیا کر سکتا ہے. اب چونکہ شہرت ہے تو اب جو جیسے کہ اب ایئرپورٹ پہ جاؤ، اسلامی بھائیوں کا ہجوم، بعض اوقات ڈیوٹیاں چھوڑ کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں سیلفیوں کے لیے، تو عورتیں بھی اس پہ کہیں کہیں لگی ہوتی ہیں. اب ذرا نظر کی بھی حفاظت کرنی ہے، ان کو قریب بھی نہیں آنے دینا، اور پردہ بھی نہیں ہوتا وہاں. وہ کون پردے وانیاں کتنی وہاں. اللہ پاک بس کرم فرمائے اور عزت ہماری محفوظ رہے. وہ بھی ڈر لگتا ہے کہ بعض اوقات دشمن بھی تو بنا رہے ہوتے ہوں گے، اور کیا کیا کس اینگل سے بنا کر وائرل کر دے اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو. تو اللہ پاک ان کے شرور و فتن سے بھی بچائے. تو اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ ایسا نہ کریں. ایک بار ایک اسلامی بھائی، میں ایئرپورٹ میں تھوڑا کچھ دیر ہوگی یا مجھے پتہ نہیں، مسجد میں داخل ہوا. مسجد کی جگہ میں جو بنی ہوتی ہے جائے نماز ہوتی ہے، وہ نماز پڑھنے کا تو ٹائم نہیں تھا. وہ کوئی اور بیٹھنے کے لیے گیا ہوں گا کیا. تو ایک اسلامی بھائی کسی ملک کے تھے، تو وہ کرسی اٹھا ہوئے، میرے کو بٹھا ہوئے، ہاتھ چومے اور خدمت دینے. یار آج اس کو کیا ہو گیا یار. تو پھر وہ کوئی شاید نظر پڑی یا کیا ہوا، وہ دور برقعے میں بند یوں ہو رہا تھا. پھر مطلب وہ کچھ وائرل ہو کر وہی جو ہوا تھا اس میں سے تصویر بھی میرے پاس پہنچ گئی. کہیں سے گھوم پھر کر میرے پاس نہیں، میرے ساتھ صاحب نے یہ بتایا، اچھا یہ ہو رہا تھا. میں لائیو فیس بک پہ چل رہا تھا اس وقت. وہ جب بھی ہاتھ چومے جا رہے تھے اور خدمت ہو رہی تھی. اللہ کے لیے خدمت کرے تو کتنے درجے بلند ہو جائے. فیس بک پر دکھنے کے لیے ہو رہا ہوتا یا نصیب. اور کیا کر سکتے ہیں. اور پہلے ہوتا تھا کسی نے یہ سوشل میڈیا کا ہی جملہ ہے، نیکی کر دریا میں ڈال. اب بولتے ہیں نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ارشاد فاروقی، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو چیز تمہیں اذیت یعنی تکلیف پہنچائے اس سے دور رہو. نیک بندوں کو اپنا دوست بناؤ اور یہ تمہیں کمی ملیں گے. اور جو لوگ اللہ پاک سے ڈرتے ہیں ان سے مشاورت کرو. گلی سے ان کی شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے ایسا رعب، ایسا دبدبا فاروق اعظم کا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہے، صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، جنتی 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 جنتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نیاز فاروقی ہمارے غریب خانے پر آج ہوا تھا، تو آپ نے بھی اگر ابھی تک نہیں کیا ناظرین حاضرین تو ضرور نیاز فاروقی کیجئے گا انشاءاللہ. ہمارے تقسیم بھی باکس کا سلسلہ تھا، نیاز کے جو ترغیب دلائی تھی وہ الحمدللہ، اور کافی صاحب جمع بھی تھے الحمدللہ.
پس صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں، پس صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں ہے بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا ہے، بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، گلی سے ان کی شیطان دم دبا کے بھاگ جاتا ہے، گلی سے ان کی شیطان دم دبا کے بھاگ جاتا ہے، ایسا روب ایسا دبا فاروق اعظم کا، ایسا روب ایسا دبا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، کرم اللہ کا ہر دم نبی کی مجھ پہ رحمت ہے، کرم اللہ کا گھر دم نبی کی مجھ پہ رحمت ہے، مجھے ہے دو جہاں میں آسرا فاروق اعظم کا، مجھے ہے دو جگہ میں آسرا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ حسین ہمارے ہیں، مولا حسین ہمارے ہیں، ساڈے پیارے امیر اہل سنت نوں نواں اسلامی سال مبارک ہوئے، پیارے امیر اہل سنت نوں نواں اسلامی سال مبارک ہوئے، پیارے باپا جان آج ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نیاز کری ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوتے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حضرت فاطمہ کے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی، 10 محرم الحرام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا، عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے جو اور جنت بھی پیدا کیے گئے ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی، حضرت معاویہ اور ابو سفیان بھی، ماشاء اللہ سبحان اللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 7 کروڑ مرحبا، اللہ پاک ان سب کو باعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور انہیں ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی اور خاندان والوں کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے، اللہم آمین بجائے خاتم النبیین
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज दावत इस्लामी के मदनी चैनल के सिलसिला हुआ बुज़ुर्गों का मदनी चैनल, सुभान अल्लाह, तो इसका भी आज आगाज़ हुआ है। और जिस तरह के अमीर अहले सुन्नत ने तरगीब दिलाई, इस्लामी भाई सजदा शुक्र भी अदा करे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुछ मनाज़िर जमा हुए हैं। मज़ीद इंशाअल्लाह रोज़ाना ही हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे और इस तरह के जो वीडियोज़ हैं वो आप हमारे इस नंबर पर जो है वो भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह अल करीम मौके की मुनासबत से हम इसको रोज़ाना ही, चूँकि कंटिन्यू मदनी मुज़ाकरे चल रहे हैं, तो आइए आज जो बुज़ुर्गों का मदनी चैनल का जो सिलसिला शुरू हुआ उसके कुछ मनाजिर और कुछ वीडियोज़ जो हमारे पास अब तक आई हैं वो मनाजिर आपको दिखाते हैं। बुजुर्गों का मदनी चैनल, 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 बुजुर्गों का मदनी चैनल। बड़े हैं ये इनसे है बरकत हमारी, सिखाएगा अब आके ये मदनी चैनल। है बच्चों जवानों कभी रहनुमाए, खुसूसन बुजुर्गों का ये मदनी चैनल, बुजुर्गों का मदनी चैनल। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिन्होंने सजदे शुक्र नहीं किया तो अब भी कर सकते हैं, ये नहीं कि वो पहला सिलसिला शुरू होने के बाद से पहले कर लिया। सजदे शुक्र का वक्त बाकी है तो क्लिप अपने बना कर भेजिए। ईसाई बहनें भी अपने घरों में सजदे शुक्र करें और इनके क्लिप वगैरह नहीं बनेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आपको हाजी अमीन, आपको आपकी मजलिस को, मदनी चैनल की मजलिस को और सभी को, और सारे आशिकान सहाबा अहले बैत को, बुजुर्गों के मदनी चैनल का जो आज से आगाज हुआ उसकी ढेरों ढेर मुबारकबाद। नया साल, नया मदनी चैनल, बुजुर्गों का मदनी चैनल। अल्लाह इसको इस दवाम बख्शे, जारी रहे और बगैर किसी गलतियों के बुजुर्गों की शरई रहनुमाई, दीनी रहनुमाई, इस्लामी रहनुमाई होती रहे। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। मैं तसद्दुक़ हुसैन शाह दुयन मीर पर के इलाका चौकी समानी से आज गुजार हूँ। नवासे नवासियाँ और पोते पोतियाँ इन्हों ना मिलान होना ज़्यादा अपने दादा दादी नाना नानी नाल, तो उन्होंने क्या किरदार होना चाहिए ना इन्होंने तरबियत। मेलान, बच्चों का मेलान नाना नानी दादा दादी की तरफ होता है। अब बच्चों का मेलान दादा दादी ते नाना नानी तरफ होंदा है। हो दादा दादी नाना नानी जेड़े बच्चों उत्ते शफकत करते हैं, जेड़े बच्चों नू डांटते ने, गल गल विच जलील करते ने, तो हो फिर बच्चे नाना नानी दादा दादी दे करीब नहीं आउंदे। है ख्याल रखना है। बच्चों का दिल बड़ा नाजुक होता है। छोटे छोटे काके काकियां इन्हों डांटोगे, शिश करोगे, हड़ हुड़ करोगे तो ये भाग जाएंगे। सानू पंजाबी नहीं आउंदी तो तुम्हारा लेके बच्चे जेड़े ने ये बार बार सवाल करते ने, है की है, हो की है, उत्थे क्यों रखा है, इत्थे क्यों रखा है। तो इन्हां दो डांटना नहीं है, हत्तल इम्कान इन्हां दा जवाब देकर दिल जोई दी नीयत अगर हो जाती है तो बड़ा सवाब है।
حدیث پاک وچ ہے کہ جنت وچ ایک گھر ہے، ایک خوشی دا گھر، یہ انہوں مل سی جڑا بچے دا دل خوش کرے گا. یہ شرح وچ یہ بھی لکھا ہے کہ جانور دے بچے دا دل خوش کرے پھر بھی یہ فضیلت او دے واسطے بھی ہے. بچوں دا دل خوش کرنا ہے. لوگ کی بچوں ڈانٹ دینے مطلب مناسب نہیں ہے. دل دکھ جاندہ ہے، دل آزاری ہوندی ہے، اے جی حق تلفی کی تھی تو معاف بھی کرانا یہ بھی ایک مسئلہ ہے. نابالغ معاف بھی کیویں کرے تو آخرت دا بڑا نقصان ہوتا ہے. تو بچوں نو بالکل سنبھل کے چلاؤنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تاڑی مادری زبان تو میمنی سی پر تاڑی پنجابی بڑی سونی سی. ہاں تنگی تاڑی پنجابی بڑی تو سونی لگ دی ہے جڑے پنجابی ہوں دے نا زیادہ سونی لگ دی ہے. مطلب یہ ساڑی پنجابی دس کدی سر پھوڑ دا تو کبھی ٹانگ توڑ دا. پنجاب دے اسلامی بھائیو، پنجاب دے اسلامی بھائیو تسی دسو پنجابی ڈاڈی سونی سی ہے. ساڑے بندے نے ساڑے بندے تو اسی گاڑ بھی ساڑے بندوں نال کر سی. اسی مدنی چینل ہوتے ہیں دو طرح دے لوکی جڑے سن دے پہ تو یہ خدا بہتر جانے انشاءاللہ بلے بلے ہوں بلے بلے. تو غیر دل جوئی تو ہے اس میں پنجابیوں کی جو اہل محبت ہیں. یہ پنجابی اب ظاہر ہے کہ ہم لوگ ہیں تو میمن پنجابی تو ہیں نہیں. یہ بھی ٹکریں مار مار کے کچھ الفاظ بول لیتا ہوں، کچھ سندھی بول لیتا ہوں، کچھ یعنی یہ ویسے اصلاً نسلاً میمن ہوں. اور آپ جو پنجاب وغیرہ یہاں میمنی تو ہے ہی نہیں. ظاہر کبھی کبھی میمنی سوال بھی آتے ہیں تو میمنی میں بھی ہم کلپ بناتے ہیں. پنجابی میں بھی اس کا بھی ہو سکتا ہے بن جائے. تو اس میں کیا اپنی اپنی زبان والے سنتے ہیں تو ان کو انس ہوتا ہے، اس سے تھوڑا رغبت ہوتی ہے اور وہ سنتے ہیں. تو اس طرح بھی ایک نیکی کی دعوت عام ہوتی ہے. تو آپ کو بھی ملے اگر یہ کلپ اس طرح کے تو دعوت اسلامی ہر کلپ اس کو پر لگا دیا کریں. یہ اڑتا رہے ساری دنیا میں اور فیض لٹاتا رہے، سنتوں کی دھومیں مچاتا رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جواب دیجئے. لبیک. قرآن کریم میں سجدے کی آیتیں کتنی ہیں؟ اللہ اللہ بے چینی ہے. جس کے بعد مائک ہوگا وہی بولے گا. 14. جواب درست ہے. انشاءاللہ عز و جل محرم الحرام میں 3 دن کا مدنی قافلہ کروں گا انشاءاللہ. حضور انہوں نے فرمایا محرم الحرام، درست تلفظ بھی اگر ارشاد فرما دے. یہ 14 سال میں نے 14 سجدے والا ہی ہے نا. تو اس میں محرم شریف کا انہوں نے نیت کا ذکر کیا. اچھا وہ توجہ نہیں جو نہیں. محرم الحرام یوں کہا انہوں نے. ہاں محرم الحرام. میں محرم شریف زیادہ تر کہتا ہوں اس لیے کبھی کبھی سوال ہوا ہے کہ حرام، حرام صحیح ہے لفظ، یہ تو ہے حرمت والے مہینے. 4 ماہ حرام ہیں سال میں، ان میں سے ایک محرم بھی ہے. اور ان ماہ حرام کا تذکرہ قرآن کریم میں. حرمت والے مہینے، عزت والے مہینے. دیکھیں عوام ہے نا ہمارے حرام حلال کا حرام زیادہ مشہور ہے، لیکن کوئی حرج کہنے میں محرم شریف زیادہ آسان ہے سمجھنے میں شاید. خیر تو یہ تو عام ہے، آپ نے ان کو پکڑا. آپ صحیح بولتا ہوں، اپنے آپ کو بھی کبھی شاید پکڑ لے. آپ محرم شریف
बोलते हैं हमारे मुहर्रम शरीफ बोलते हैं, मुहर्रम शरीफ कौन बोलता है? तो मुहर्रम शरीफ सही तलफ्फुज है मुहर्रम, मोहर्रम नहीं है, मोहर्रम हमारे यहाँ। आप खुद गौर करेंगे ना तो आपको भी लगेगा कि यार मेरे मुंह से भी यही निकल रहा है मुहर्रम। 10 मुहर्रम को मदनी काफिले में चलेंगे, 10 मुहर्रम को कहाँ बोलते हैं? तो मुहर्रम कहने की आदत डालें। ये मुहर्रम तो लफ्ज़ हदीस में आया ना मुहर्रम, तो मुहर्रम मोहर्रम नहीं है, मुहर्रम। महरम भी नहीं है इसका नाम, मुहर्रम मीम पर पेश। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनको दुरुस्त जवाब पर इंशाअल्लाहुल करीम सैयदी अमीरुल सुन्नत के 2 रिसाले तोहफे में पेश किए जा रहे हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ विलादत जल्दी जल्दी बता दीजिए। माफ कीजिए, अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन दुनिया में तशरीफ लाए, पैदा हुए, वो दिन कौन सा था, ये जल्दी जल्दी बता दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 3 दिन मदनी काफिला इंशाअल्लाह मुहर्रमुल हराम इंशाअल्लाहुल करीम। पीर शरीफ जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह इन्हें 2 रसाइल तोहफे में पेश किए जाएंगे। माशाअल्लाह। नवासे रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत किस तारीख और किस महीने में हुई? मुहर्रमुल हराम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तारिक तारीख बेरा शरीफ से। माशाअल्लाह। 10 मुहर्रमुल हराम। कुछ और भी सवाल है? सवाल में हिस्सा है कुछ? हाँ हो गया सवाल। जवाब दुरुस्त है। हफ्तावार इज्तिमा में नियत है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाहुल करीम इन्हें तोहफे में 2 रसाइल पेश किए जाएंगे। किस सहाबी का लक़ब फारूक आज़म है? उनका नाम बताना है, तो सोच समझ के नाम बताना। नाम क्या था? हाथ थोड़े ढीले ढीले हो रहे, क्या है यार? ये लोग हंसे नहीं आप पर, यार फारूक आज़म का नाम भी नहीं पता आपको। सोच समझ के नाम बताना। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अरसलान अत्तारी गुजरात पंजाब से। इंशाअल्लाह मैं मुहर्रमुल हराम के 3 दिन मदनी काफ़िले की नियत करता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो। जवाब दुरुस्त नहीं है। कल तलफ़्फ़ुज़ बताया था मैंने, बताया था ना, और वही गलती बताई थी जो आज की गई। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो। नाम ये भी नहीं है। तो लक़ब तो पहले पूछा, इनका नाम मुजर्रद सिंगल, यानी इनका नाम पता है। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो। जवाब दुरुस्त है। नाम था उमर। उमर, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, ये इतना हम बोलते हैं। माशाअल्लाह इनको मकतबतुल मदीना के 2 रसाइल तहाइफ में दी जा रहे हैं। तो ये उम्र फारूक हमारे यहाँ कहा जाता है, मुबल्लिगिन में बोल देते हैं उम्र फारूक। ये उम्र नहीं है, उमर मीम पर ज़बर है। उम्र, उमर फारूक, उमर फारूक आज़म, हजरत उमर। हजरत उमर बोलेंगे, सही बोलेंगे। फारूक मिलाएंगे तो फिर वो गड़बड़ कर देते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सवाल चलाइए।
میرا نام محمد ابو بکر اتاری ہے۔ پیارے میرے اہل سنت، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سجدہ شکر کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ میرے اور میرے والدین کے لیے بے حساب بخشش کی دعا فرما دیجیے۔ یغفر اللہ لنا ولکم ولہما بغیر حساب، بالکل یعنی کہ وضو کے ساتھ سجدہ شکر کرنا ہے۔ محمد اویس اتاری ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ جس طرح امیر سنت نے ترغیب دی نیاز عمر فاروق کے بارے میں، میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو نیاز ہے تو یہ کیا رات جب شب ہوتی ہے، رات ہوتی ہے تو اسی وقت ہی دینی ہوتی ہے، دن کو بھی دے سکتے ہیں؟ سارا سال جب چاہیں دے سکتے ہیں۔ تو جیسے آج یوم شہادت یعنی نسبت آج شروع ہوئی نا غروب آفتاب سے، تو ہمارے یہاں مطلب ہے کہ رات کو کر دیتے ہیں تو کل دن کو کرنے والے کریں گے۔ زیادہ تر تو دن کو ہی بانٹنا آسان ہوتا ہے، رات کو بانٹنا اتنا آسان ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو رات کریں دن کریں، رہ جائے تو بعد میں کر لیں، ایڈوانس میں کسی نے کر لیا تو 20 سال ثواب ہو سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ دل کو دنیا کی لذتوں سے مکمل طور پر کیسے پاک کریں؟ جواب ارشاد فرما دیں، اور مجھ گناہگار کے لیے جلد مدینے کی حاضری کی دعا فرما دیں۔ بنت اعظم اتاریہ۔ اس کے لیے تو کافی ریاستیں کرنی پڑیں گی کہ دل دنیاوی لذتوں سے خالی ہو جائے، ہے تو یہ بہت ذرا مشکل کام ہے۔ صحبت ایسی چاہیے، اتنی مطالعہ چاہیے، اتنا ذہن بھی چاہیے کہ بندہ مطلب ہے کہ ایک تو گناہوں سے بچنا ہی اب تو دشوار ہوتا چلا جا رہا ہے، تو لذتیں وہ جائز لذتوں سے بھی بچنا، یہ تو اولیاء کرام کی سیرتوں میں سا ملتا ہے کہ وہ دنیاوی جائز لذتوں سے بھی مطلب ہے کہ کتراتے تھے کہ قیامت کے دن ہے تو حساب تو ہے، دنیاوی نعمتوں کا، دنیاوی لذتوں کا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ شہد ملا پانی پیش کیا گیا، انہی کا غالب واقعہ ہے۔ تو حالانکہ یہ بالکل جائز ہے، لیکن آپ منہ پر لے گئے پھر ہٹا دیا، نہیں پیا، وہی قیامت کا حساب یاد آ گیا۔ یہ ظاہر انہی کا حصہ تھا۔ اللہ پاک ہم کو بھی یہ سعادت بخشے۔ اس کے لیے احیاء العلوم کا مطالعہ مفید رہے گا۔ منہاج العابدین مختصر ہے، اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا کہ دنیاوی لذتوں سے بچنا، اس میں کافی واقعات، روایات یہ سب ملیں گی اس میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اردو کچھ سوالات آئے ہیں، ارشاد فرمائے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام اور آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ عمر، نام تو عمر ہے آپ کا، قریشی، بنو عدی، قریشی تھے، قریشی کی شاخ بنو عدی سے آپ کا تعلق ہے، نام آپ کا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قبول اسلام تھا، یہ کس طرح یہ واقعہ پیش آیا قبول اسلام کا؟ اس کی مختلف روایتیں بیان کی گئی ہیں الفاظ کے فرق کے ساتھ۔ مختصر یہ کہ آپ تلوار لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے تھے جلال میں، تو کوئی صاحب مل گئے تو انہوں نے عمر کہاں چلے، تو انہوں نے اپنا وہ بتایا ارادہ، تھے بڑے بہادر اور لوگ ان سے ڈرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کام بات پر رکھیں، پہلے اپنے گھر کی خبر لیں کہ آپ کی بہن اور بہنوئی اسی نبی کا کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ فوراً بہن کے گھر پہنچے اور بس وہ جب پہنچے نا تو کچھ تلاوت، اندر سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی، قرآن پڑھا جا رہا تھا، تو جیسے ہی پتہ چلا عمر آئے ہیں تو انہوں نے وہ تلاوت روک دی اور اوراق بھی چھپا دیے جس پر یہ پڑھ رہے تھے، اور بس انہوں نے آتے ہی ناؤ دیکھا نہ تھا اور مار دھاڑ شروع کر دی، بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا کہ تم لوگوں نے یہ حرکت کی ہے،
जब ये थके तो फिर वो इनको कुछ मतलब ये सूझी कि तुम पढ़ क्या रहे थे, ये डर रहे थे, उन्होंने नहीं मुझे सुनाओ पढ़ क्या रहे थे। तो इन्होंने कहा तुम्हारे कपड़े नापाक, तुम्हारा बदन नापाक, तुमको कैसे सुनाएंगे पाक कलाम, पहले वुजू करो, गुस्ल करो, इस तरह इनको नहलाने धुलाने की। वो तो खैर ये तैयार हो के आगे मैं सुनूंगा जरूर। अब जब कुरान करीम इनको सुनाया गया तो ये सुनते गए और इनका दिल जो था वो नर्म पड़ता गया। अच्छा ये इतना प्यारा कलाम है, ये आम इंसान का नहीं हो सकता, जरूर कोई बात है इसमें। तो मुझे अपने नबी के पास ले चलो। तो ये सरकार की तरफ चले, ये तलवार अब भी थी आपके पास। तो जब ये वहां पहुंचे, दारे अरकम में पहुंचे, ये समझो दुनिया का सबसे पहला मदरसा, यहाँ सहाबा किराम की तरबियत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते, तालीम देते इनको। तो ये वहां पहुंचे, तलवार, सहाबा किराम भी थोड़ा तशवीश हुई कि ये पता नहीं क्या होगा। तो ये जैसे ही दाखिल हुए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आगे बढ़े और इसके कंधे पर हाथ रखकर, हजरत उमर के शाने पर हाथ रखकर ये कपड़ा पकड़कर इरशाद फरमाया कि उमर किस इरादे से आए हो? इनके मुंह से बेसाख्ता निकला ईमान लाने के लिए। तो इनको मुसलमान कर लिया गया, कलमा पढ़ा इन्होंने। तो साहबा किराम में खुशी की इंतहा न रही और इन्होंने वो अल्लाह अकबर के वो नारे लगाए कि करीब की पहाड़ियां गूंज उठी, इतने जोरदार नारे लगाए। और उस वक्त 39 मुसलमान थे, 39। तो ये इनकी इस्लाम आवरी से, मुसलमान होने से 40 का फिगर जो था ये पूरा हुआ। 40 का आदत जो है इसकी भी एक अहमियत है। ये 40 का आदत इनके आने से पूरा हुआ, इसीलिए इनको मुतम्मिमुल अरबईन भी कहा जाता है। यानी अरबईन माने 40 का फिगर पूरा करने वाले। तो अब ये क्या, यूं ये मुसलमान हो गए और बड़ा मतलब है कि मुसलमानों को बस हिम्मत आ गई। और इन्होंने तो फिर आगे चलकर वो बोला क्या हम अकबर नहीं है, छुप छुप क्या नमाज पढ़ते, चलो मैं हूं ना। तो काबे शरीफ की तरफ निकले और ये उसी बैठक में निकले या कब निकले वारन, तो ये वहां पहुंचे। और हजरत हमजा ये भी शेर, अल्लाह और रसूल के शेर थे। तो एक तरफ इन्होंने तलवार पकड़कर, दूसरी तरफ हजरत उमर तलवार पकड़कर खड़े हैं। नमाज इस शान से इन्होंने मस्जिदुल हराम में अदा की। ये तारीख का एक बड़ा यानी कि इजाफा हुआ मुसलमानों की कुव्वत में। तो यूं मतलब ये कि ये, और ऐसे दिलेर ऐसे बहादुर दीगर साहबा किराम ने जब मदीने हिजरत की ना, छुप छुप कर की थी, ये तलवार लेकर मस्जिद हराम में पहुंच गए। वहां होता था तो कुफार का ही गलबा होता था। तो वो मतलब पहुंचे और बोला जिसको अपनी बीवी को बेवा करना हो, अपने बच्चों को यतीम कर रहा हो, वो उमर को रोके। उमर हिजरत करके मदीने जा रहा है, किसी की मजाल नहीं थी जो हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु का रास्ता रोके। ये ऐसे बहादुर थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनकी बरकतें नसीब फरमाए हमको। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो ज़िंदगी का जो अंदाज़ था और इनके मुतालिक जो सादगी के मुतालिक जो बयान किया जाता है, कुछ इस मामले में भी बयान कीजिए। इनकी सादगी तो मिसाली सादगी थी। यानी अज़्ज़ुहद ले इमाम अहमद में सफ़ा 52, अज़्ज़ुहद ले अहमद सफ़ा 152 पर है कि एक मरतबा खुतबा दिया हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। इस हाल में खुतबा दिया कि उस वक्त बदन पर मौजूद चादर में 12 पैबंद लगे हुए थे। अब तो पैबंद के माना भी शायद पता नहीं लोगों को आते हुए नहीं आते होंगे। अपने मेमनी में ठिगड़ा बोलते हैं, गुजराती में ठिगड़ू, कपड़े का टुकड़ा लगाते हैं, जहाँ कपड़ा फट जाए ना वहां, तो 12 जगह पैबंद लगे हुए थे।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम सैयद गुलाम हुसैन शेख तारी है और मैं वाकई से अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरा प्यारे अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये अर्ज़ है कि इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कोई मशहूर करामत बयान फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। एक करामत थोड़ी है, सरापा करामत है। कई करामत इनकी किताबों में लिखी हुई हैं। एक करामत ये भी है कि एक बार ज़मीन पर जलजला आ गया, जलजले से ज़मीन थर थर कांपने लगी। वो आपके पास तो हंटर होता था, अपना हंटर उठाया और ज़मीन पर मारते हुए फरमाया, ए ज़मीन क्या उमर ने तुझ पर अदल नहीं किया, इंसाफ नहीं किया? ज़मीन साकिन हो गई, ठहर गई, उसका जलजला जाता रहा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इस्लाम के दूसरे खलीफा आप तो वो हैं जिनकी शान खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। आपका ईमान लाना भी मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत है। रोब और दबदबा ये तो अल्लाह पाक ने आपको खास तौर पर अता फरमाया था। कुफ्फार तो आपसे डरते ही थे, लेकिन शैतान तो उस गली से ही भाग जाता था जहाँ से आप रज़ी अल्लाह अन्हु गुजर रहे होते थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सिला कुछ यूं मिला के शहादत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कब्र मुबारक के करीब ही उनको जगह अता फरमाई। और जब कयामत के दिन कब्र मुबारक से बाहर तशरीफ लाएंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह अन्हु का एक हाथ पकड़ा हुआ होगा। मोहब्बत का ये सिलसिला दुनिया से शुरू हुआ और कयामत तक जारी रहेगा। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो मोहब्बत करते ही थे, साथ ही जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैमिली मेंबर्स हैं, अहले बैत हैं, उनसे भी बहुत मोहब्बत फरमाया करते थे। फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की बेपनाह इज्जत करते थे। हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा के लिए एक मर्तबा यमन से स्पेशल लिबास मंगवाए थे। अपने दौरे खिलाफत में अहले बैत का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखा करते थे। प्यारे अमीर अहले सुन्नत ये इरशाद फरमाइए कि हम हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत का इजहार किस तरह कर सकते हैं। माशाअल्लाह, आपने तो किया भी, दोनों ने मिलकर मोहब्बत का इजहार, और हमने भी मोहब्बत का इजहार किया। अल्हम्दुलिल्लाह नियाज़ फारूकी की धूम मची है। ये मोहब्बत भी ही में तो है। फिर हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में कुछ ना कुछ बयान इस वक्त जारी है। ये सब मोहब्बत ही की तो वजह से है। तो बिल्कुल हमें मोहब्बत करनी चाहिए, ज़रूरी भी है। और इसका इज़हार इनके नक्शे कदम पर चलने से भी होता है कि हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये बहुत नरम तबीयत के हो गए थे। पहले आपका मिजाज जो भी था, ईमान लाने के बाद आपके मिजाज में नरमी आ गई थी, लेकिन दुश्मनान इस्लाम के साथ सख्ती थी। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, इनके लिए बड़ी सख्ती थी। लेकिन आप आपस में जो था रुहमाउ बैनहुम की हर साहबी तफसीर था। तो इनमें ये भी मतलब यानी कि आपस में मेहरबान मोहब्बत करते थे। यहाँ तक कि एक बार कोई कहीं से गुजर रहे थे कि नाबीना रास्ते में था, तो उसके पाँव पर आपका पाँव मुबारक बेख्याली में पड़ गया। तो नाबीना चीखा, जैसे हमारे यहाँ बोलता है अंधा है। तो उसने इस तरह का जुमला का पता नहीं था कि कौन है। तो आपने कमाल नरमी से फरमाया, यानी उससे माजरत करते हुए कि मैं नाबीना तो नहीं हूँ, लेकिन भूल मुझसे हुई है कि तवज्जो बेतवज्जोही में बेख्याली में आपको मेरा पाँव लग गया। तो इतने नरम, हालांकि यानी कि कोई मतलब 2 टक्के के मतलब कोई जिसके पास कोई पावर्स हो उसको अगर यूं झाड़ दे तो वो है ना क्या ना करे। लेकिन ये हालांकि बहुत बड़ी ताकत थी इनके पास। अगर बताए हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु
कितने बड़े हकीम थे, कितने बड़े बादशाह थे, खलीफात कितने बड़े थे। आधी दुनिया पर इनकी हुकूमत थी। आज भी किसी की आधी दुनिया पर हुकूमत नहीं है। हालांकि उन दिनों वसाइल न हवाई जहाज, न स्कूटर, न कारें, न बसें, न ट्रेनें, ये गाड़ियां भी नहीं होती थी। बड़ी ऊंट घोड़ों में सफर होते थे। किस तरह आधी दुनिया की सल्तनत को चलाते होंगे। इतने बड़े फरमारवा, इतने बड़े बादशाह थे, लेकिन वो नाबीना ने झाड़ दिया, उससे कोई बदला नहीं किया। तो ये थे हमारे फारूक आजम। तो हमें भी इससे नरमी का भी दर्स मिलता है कि अपनी ज़ात के लिए, अपने नफ्स के लिए गुस्सा नाफिज करने से बचना है। गुस्सा आ जाता है इंसान को, तो इसको यानी इस पर अमल ना करे, गुस्से के मुताबिक झगड़े ना करे। गुस्सा आ जाता है तो गाली निकल जाती है, अगले को बुरा भला बोलते हैं, क्या क्या कर रहे होते हैं गुस्से में। कत्ल गारतगरी गुस्से में ही तो हो रही होती है। तो इन सब से मतलब गुस्से के इन अवामिल से हमें बचना है। फारूक आजम की सीरत जो है ये हमें नरमी का भी दर्स देती है। इबादत भी ये बहुत करते थे, यहाँ तक कि जब आप पर हमला हुआ, कातिलाना हमला, जिसमें 26 जुलहज शरीफ को आप पर हमला हुआ और होश जो था वो आपके पास न रहा, लेकिन यूं ही आपको होश आया, अपने बेटे से फरमाया मुझे नमाज पढ़नी है, और आपने मतलब नमाज फजर की नमाज जो बाकी थी वो अदा फरमाई। और आपका एक इरशाद ये भी मिलता है कि इंसान, शायद उसी दौरान आपने फरमाया कि नमाज के बगैर आदमी किस काम का। तो नमाज नमाज नमाज। तो हम जो हैं फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु के मानने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम भी कोई नमाज ना छोड़ा करें, हर नमाज की पाबंदी करें। तो उन पर तो हमला भी नमाज में ही हुआ ना। और ये इनकी दुआ का समर था। इनकी दुआ यूं मशहूर है, हर एक को ना पता हो, लेकिन यूं मशहूर है हदीस पाक इनकी दुआ की कि ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलद रसूलिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कि या अल्लाह मुझे अपनी राह में शहादत नसीब फरमा और अपने नबी के शहर में मुझे मौत दे। तो ये दोनों दुआएं इनकी कबूल हुई कि इनको नमाज की हालत में शहीद करने की, बहरहाल वो जख्म जो था उसी से शहीद हुए थे। तो नमाज की हालत में ये शहीद किए गए, शहादत यानी हमला किया गया और आखिरकार शहीद हुए। मदीने ही में शहादत हुई, वफात हुई आपकी, और तदफीन जहाँ हुई। ये तो कोई दुनिया का बड़े से बड़ा ताजदार आ जाए, सारी दुनिया का गोल्ड दे दे, कुछ भी दे दे, जहाँ हज़रत फारूक आज़म तशरीफ फरमाया कोई नहीं जा सकता है। देखिए वहाँ दफन कोई हो ही नहीं सकता, किसी की मजाल ही नहीं है नहीं, कोई तरकीब ही नहीं है। ये फारूक आज़म ने जिसको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने करीब रखें, ऐसा करीब रखें, उसकी शान क्या होगी, उसकी अज़मत कितनी होगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक इनकी बरकतों से हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत करे और सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नक्शे कदम पर, इनकी सीरत के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने का जज्बा अता करे, और हम जो जो हमारे लिए मुमकिन वो होता रहे, और हम इनकी सीरत पर अमल करते रहे। काश, 7 करोड़ काश। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना कराची में मुल्क भर से कई ज़मींदार इस्लामी भाई आशिक़ान रसूल जमा हुए हैं। शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ करूँगा कि आप इरशाद फरमाए कि ज़मींदार, इनके पास एक बड़ी तादाद हारियों की होती है, मुलाजिमीन की होती है, इनके तहत काम करने वालों की होती है। तो इनके साथ इनका रवैया सलूक कैसा होना चाहिए। मज़ीद ये कि ये जो ज़मींदार होते हैं बिलखुसूस, ये बड़ा असर रसूल रखते हैं अपने गाँव में, इलाकों में। तो नेकी की दावत के कामों में ये किस तरह से आगे आ सकते हैं, किस तरह से मदद कर सकते हैं, इस पर कुछ रहनुमाई फरमा दीजिए। माशाअल्लाह, सबको खुशामदीद।
बड़ी दूर दूर से आप लोग तशरीफ ले आए, सफ़र करके। अल्लाह और रसूल की मोहब्बत ही इसका सबब बनी, ये कहा जाएगा। तो अल्लाह पाक आपका आना जाना कबूल फरमाए। ज़मींदार वाकई यानी कि एक मतलब शख्सियत का मालिक होता है। अब अपनी शख्सियत से चाहे वो दुनिया जमा करे या आखिरत, तो वाकई इनके मातहत जो होते हैं किसान वगैरह, तो इनके साथ इनका रवैया जो है, इनका अंदाज, ये बड़ी आजमाइश है इसमें। क्योंकि शैतान तो इसमें डालेगा जहन में कि तू कहाँ, ये कहाँ, तो यूं मतलब ये कि तरकीब आउट होती रहती होगी। यदि किसी मुसलमान को खुद से घटिया समझना, ये तकब्बुर है। तो यहाँ ये जमींदार को किसान कैसा महसूस होता है, ये अपने दिल पे गौर करे। मैंने फार्मूला बता दिया आपको। और जिसके दिल में राई बराबर तकब्बुर हो, वो जन्नत में नहीं जाएगा, ये हदीस पाक में। यानी शुरू में, बाद में सजा पाने के बाद वो बेशक मुसलमान है, जबकि ईमान पर अगर खात्मा हुआ तो जन्नत में जाएगा। अल्लाह चाहे तो बेहिसाब बख्श दे, तो कादिर मुतलक जो चाहे कर सकता है। ताम ये कि हमें मतलब उससे डरना है। मजीद है कि इसको मतलब इसके हुकूक पूरे देने, जितनी मेहनत मजदूरी उसने की उसमें कटौती नहीं करनी। अब वो जिस अंदाज में इनके साथ करने वाले ज़मींदार मजालिम करते होंगे, इनके हुकूक पामाल करते होंगे, इनकी रकमों के साथ खेलते होंगे, इनके ख़ानदानों के साथ ये गेम करते होंगे, ये खुद समझते होंगे। और ज़मीर भी, जिनका ज़मीर जिंदा होता हो, ये समझते भी होंगे कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ ये है तो गलत। तो जो भी इस तरह के गलत काम हो रहे हैं, अल्लाह से डर कर इनको फौरन उन गलत कामों को रोकना बहुत ज़रूरी है। इसी हाल में मर गए तो ज़मींदारी बचा नहीं सकती, बादशाह भी काम नहीं आती। बड़े बड़े आए, फिरौन ने कितना, अरे क्या नहीं किया फिरौन ने, खुदाई का दावा किया और क्या नहीं किया, आखिरकार डूब मरा दरिया नील में। आज कोई समदर्दी करने वाला नहीं है। नमरूद ने खुदाई का दावा किया, मगर एक लंगड़े मच्छर ने इसको हलाक कर दिया भेजे में घुस के। मच्छर भी लंगड़ा था। तो कहाँ गई इसकी बादशाही, कहाँ गई इसकी खुदाई, कुछ काम ना आया। आज इस पर भी कोई मतलब तरस खाने वाला नहीं है, कोई इसका भलाई के साथ तस्करा करने वाला भी नहीं है। हाँ, इसकी मिसालें, इनकी मिसालें इबरत के लिए दी जाती हैं। तो मेरा तेरा क्या गुजर, हमारे को कौन से इख्तियारात हैं, जितने इन्होंने अपने अंदर इख्तियारात रखे हुए थे, लेकिन आखिरकार तो ऐसा ना हो कि गजब का कोड़ा, रब करीम के कहर का कोड़ा ऐसा चल जाए कि जमींदार उसी जमीन में दफन हो जाए अगर इसने नाइंसाफियां की। तो इसलिए वो सबको डरना है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। अल्लाह पाक की मेरे साथ खुफिया तदबीर ने छुपा फैसला किया है। तो सबके साथ अच्छा सुलूक, हुस्न सुलूक करना, ये ही दुनिया और आखिरत के लिए भलाई का सामान है। और मजीद ये कि ये दीन का काम भी, जिनको वो दुनिया में इज्जत मिली होती है, ये दीन का काम भी अगर उससे फ़ायदा उठाएं तो ज़्यादा कर सकते हैं। मसलन अगर ज़मींदार कहे अपने किसानों को कि मैंने 3 दिन मदनी काफिले में सफ़र करना है, चलो भाई आप भी आना चाहे तो आए, चलो ठीक है, आप 2-3 जो है वो खेत को संभालें, 2-3 जो है मेरे साथ चले। इनको रिक्वेस्ट करें आप, ये कहाँ मना करेंगे आपको। एक मिसाल मैंने दी। तो इस तरह आपके तो बहुत सारे ताल्लुकात वाले होते हैं कि जमींदार जा रहा है, वह वडेरा जा रहा है, साईं जा रहा है, साईं के पीछे पता नहीं कितने चल पड़ेंगे। तो यूं अपने मस्जिद में नमाज जा रहे हैं, नमाज पे तो बोला कि भाई मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ, आप चलो ना भाई, नमाज का टाइम हो गया, वज़ू कीजिए, चलते हैं नमाज के लिए। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, आप जल्दी तैयार हो जाए। यार कौन आपको मना करेगा। तो आप कितने नमाजी बना सकते हैं,
किसी फर्द को नमाज के लिए तो मतलब रियायत भी नहीं दे सकते, ज़ाहिर है, और सबको नमाज का कहें और इनको इंशाअल्लाह आप कहेंगे सारे नमाजी बनेंगे। इस तरह दीगर सुन्नतों पर अमल, दावत इस्लामी के इज्तिमात के लिए जिनके पास इतनी नफरी है और इज्तिमा ऐसी जगह जहाँ पहुँचना मुमकिन है तो गाड़ी वाड़ी चला दें और उसमें खुद भी बैठे, इनको भी ले जाएं, सबको इज्तिमा में ले जाएं, तो वहाँ इंशाअल्लाह इनकी बड़ी इस्लाह होगी, नमाजों में पक्के होंगे, सुन्नतों के पाबंद बनेंगे, जैसे खौफ खुदा, इश्क मुस्तफ़ा में इजाफा होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुद आपके अंदर भी चेंजेस आएगी इंशाअल्लाह। तो यूँ मतलब आप काफ़ी नेकी की दावत में भी हिस्सा ले सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि अस्हाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान, अस्हाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान। फिदा का रूही या सिद्दीक, फिदा का नफ्सी या उमर, फिदा का ऐनी या उस्मान, फिदा का कल्बी या हैदर, जानम फिदाए अहले बैत, जानम फिदाए अहले बैत। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल नया इस्लामी साल शुरू हो रहा है और 1 मुहर्रम से दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना कराची में मीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब मदनी मुज़ाकरे शुरू फरमा रहे हैं। इनमें दीन की होगी बातें, फ्रैक्चर बिल्डिंग की होगी बातें और दुनिया और आखिरत बेहतर बनाने के लिए इल्म और हिकमत के मदनी पुल होंगे अमीर अहले सुन्नत के साथ। आशिकान रसूल ने लाहौर से ट्रेन बुक की है, फैजान दाता एक्सप्रेस। जी हाँ, ये फैजान दाता एक्सप्रेस लाहौर से जा रहे हैं। एक माह के आशिकान रसूल है, 12 दिन के आशिकान रसूल है और कुछ इस्लामी भाई इनको रुखसत करने के लिए 3 दिन के लिए भी आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना जा रहे हैं। इल्म दीन हासिल करेंगे, फ्रैक्चर बिल्डिंग होगी, मुगल बात के बारे में सीखेंगे, हक़ुक़ुल्लाह के बारे में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मालूमात हासिल करेंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है आप भी मदनी चैनल देखते रहिए, दावत इस्लामी से वाबस्ता रहिए, मदनी काफिलों में सफर कीजिए। ये वो आशिकान रसूल है जो अपने साल का आगाज, मुहर्रम शरीफ का आगाज इल्म दीन से और नेकियों भरे माहौल से कर रहे हैं। अस्हाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान, अस्हाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान। क्यों न हो रुतबा बड़ा अस्हाबो अहले बैत का, क्यों न हो रुतबा बड़ा अस्हाबो अहले बैत का। मुस्तफा उनका खुदा अस्हाबो अहले बैत का, माशाअल्लाह। तो फैजान दाता एक्सप्रेस भी यहाँ माशाअल्लाह पहुँच गई है। सुभान अल्लाह, मरहबा मरहबा। अल्लाह आप सबका आना जाना कबूल फरमाए। और देखिए जितने भी आए हैं ना, ये क्या बोल के आए कि हम फैजान मदीना जा रहे हैं, ठीक है ना। और कोई 3 दिन के लिए आया है, कोई 12 दिन के लिए आया है, तो इस तरह का कुछ फरमा रहे थे हाजी जाफर। जो यहाँ फैजान मदीना आ गए वो आ गए। अब यह कि कराची की रौनकें तो है, मतलब इसमें कोई शक नहीं है, रौनकें होती हैं बड़े शहरों में। ये रौनकें आमतौर पे वो दीन के लिए मुफीद नहीं होती, ये गफलत भरी रौनक होती है चारों तरफ बाज़ारों में। और ये रौनक क्या रौनक होती है, इनको दीन का फ़ायदा क्या होता है। तो इसमें यह कि आपने रहना मस्जिद में 3 दिन 72 घंटे 72 आवर्स ये मस्जिद में आपने गुजारने हैं। जब तक आपकी ट्रेन का जो हिसाब किताब है तो उस वक्त तक अब शहर घूमने जाएंगे आप, फिर बोलेंगे हम फैजान मदीना 3 दिन रहकर आए हैं वहाँ, ये कैसे मसला हल होगा। रात को जल्दी सो जाएंगे, दिन को शहर घूमने निकल जाएंगे, फिर खाने के टाइम पे आ जाएंगे। यार ये उससे कैसे होगा यार। आप घर में कमा के दोगे तो माँ बाप भी आपको खिलाएंगे, कमा के नहीं दोगे तो कुड़कुड़ करेंगे। तो मेहरबानी करके आपको 3 दिन यहाँ गुजारने और कमाने और खाने की बात भी निकली है तो यहीं रहेंगे ना 3 दिन फैजान मदीना में। अरे 2-4 तो है जो रहेंगे, बाकी पूरी एक्सप्रेस घूमने जाइए नहीं। और मुख्तलिफ शहरों से जो तशरीफ लाए वो भी मतलब जब जब आए तो 3 दिन या जो दिन फैजान मदीना के लाए तो वो पूरे यहीं गुजारा करेंगे। हाँ, जब मेरे को फारिग वक्त है, कोई हल्का वगैरह दुआओं का और इस तरह नहीं लगा हुआ, तो ये अपने फैजान मदीना के बाहर जो दुकान है तो वहाँ से कोई चीज़ लेनी है
किताबें लेनी है वगैरह तो वो चला गया, वहाँ लेकर आ गया, वो अलग सूरत है। बाकी घूमने का हमने समुंदर देखने जाना है तो फला पार्क में चलेंगे, तो वो पार्क बहुत मशहूर है तो वहाँ चलते हैं, तो ये तो सैर व तफरी, ये आपका काम नहीं है। मतलब इंशाअल्लाह यही रहेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। और खाने पीने की बात निकली है, आपको अंदाजा है आप जो ये खा रहे हैं, आज भी खाना खाया होगा, जल्दी आ गए होंगे तो नाश्ते की भी तैयारी है, तो तैयारी हो जाएगी। तो सहरी की भी इंशाअल्लाह, मुहर्रम के रोज़े, तो मुहर्रम का हर रोज़ा पूरे महीने में, मुहर्रम का हर रोज़ा एक महीने के रोज़े का सवाब। रमज़ान शरीफ के बाद मुहर्रम के रोज़ों की फजीलत, इस पर लाखों करोड़ों रुपया खाने का खर्चा होता है, तो ये कहाँ से आता है? इस पर कोई गौर किया? खाया, डकार ली और बैठ गए? नहीं यार, जेब में भी हाथ डालना चाहिए। वैसे मुहर्रम के दिन है तो इसाले सवाब के लिए, शहादाए करबला के लिए हमारा वैसे लंगरे रज़विया, ये अपना पता, जिनको साईं भाई उनको पता होता है, तो ये ज़ाहिर है कि आप लोगों की जेबों से ही भरता है। तो कुछ ना कुछ शफकत कीजिएगा कि इसमें अपने हिस्सा मिलाइएगा। जो भी साहब आए हैं, जो ज़्यादा हैसियत नहीं है तो अपनी हैसियत के मुताबिक, जिनकी हैसियत ज़्यादा है, लोग खिचड़े की दे के और चढ़ाते ही ना करोड़ों रुपए की। अल्हम्दुलिल्लाह नियाज़ हुसैन इन दिनों बढ़ता है, तो नहीं कुछ यहाँ का भी रुख हो जाए। जो लोग नमाज सीखने आए, सुन्नतें सीखने आए, नेकी के काम और मतलब गुनाहों से तौबा करने आए, तो इनके पेट में जाएगा तो ज़्यादा इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। तो जो भी देना हो, आपको रकम देनी है तो भी रकम दीजिए, अगर पक्का कर देना तो फिर हमारे जो जिम्मेदारी हैं इस्लामी भाई होते हैं, पहले इनसे मालूमात करनी हो, क्यों हमारा तो ये 3 टाइम पकता रहेगा, आपका पक्का हुआ फिर काम नहीं आएगा। तो पहले से कि भाई फुला टाइम जो रात का खाना है वो हम देंगे, या फुला टाइम नाश्ता हमारी तरफ से होगा। कोई यूं करना चाहे तो पहले से उसको कांटेक्ट करना पड़ेगा, या फिर रकम दे दें तो सबसे आसान। और ये कि फिर इसमें मुहर्रम में ही खिलाना जरूरी नहीं, बच गया तो आइंदा हमारे तो सारा साल ये सिलसिले चलते ही रहते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा लीजिएगा। और जो मुखय्यर इस्लामी भाई हैं, जिनको अल्लाह ने माल दिया और बहुत दिया है, अभी तो ज़मींदारों का भी तज़किरा हुआ था, ये भी तो साहिब माल होते हैं आमतौर पर, इनको भी अपने आखिरत की चांदी है। मुझे आपकी एक पाई भी नहीं चाहिए, मेरे हाथ में मत दीजिएगा। ये जो भी अपने बॉक्स भी लगे हुए वहाँ डाल दीजिएगा। बड़ी रकम है तो अपने जिम्मेदारों के जरिए, बड़े जिम्मेदार जो भी अपने हैं यहाँ मालियात के, तो उनके पास जमा करवा दीजिए। तो इंशाअल्लाह ये कि इस तरह हमारा ये लंगर है, रज़वे भी सारा साल चलाना होता है, तो ये मौके होते हैं कि जब ज़्यादा तादाद में साईं भाई आते हैं तो इसमें भी कुछ न कुछ हमें रकम मिल जाती है। इन पर फिर भी खर्च तो होती है, यानी ये 10 दिन जो मुहर्रम के, अभी कोई साईं भाई हो सकता है कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको बता दें कि इन 10 दिनों में कितने लाख या कितने करोड़ खर्चे होते हैं खाने पीने में। महंगाई कितनी है? हाँ भाई कोई है? जी, ये मैं इसी पे ही मैं इंशाल्लाह तरकीब बना रहा हूँ। और अभी आपका जो गुफ्तगू है सुनकर हाजी याफूर अभी हाथों हाथ उन्होंने मैसेज दिया है, किसी शख्सियत से बात की, तरकीब बना रहे हैं। 10 लाख रुपए तो ओके किए इन्होंने, मगर रोज़ाना तकरीबन 500 से 600 रुपए का खर्चा आता है, 3 टाइम का खाना और चाय वगैरह भी इनको पेश की जाती है। तो इस वक्त भी तकरीबन 5000 से ज़्यादा ये अफराद हैं यहाँ पर। तो यूँ 25 से 30 लाख रुपए का तो रोज़ाना, ये रफली एस्टीमेट में बता रहा हूँ, तकरीबन ये खर्चा होगा। तो इस तरह एक बड़ी खतीर रकम जो है ये ज़ाहिर इस पर खर्चा होता है। खतीर रकम, ये बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जी। 25, 20, 25 लाख ये थोड़ी रकम तो नहीं है, ये भी योमिया जी, रोज़ा डेली एक एवरेज और रफ आइडिया है, कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस तरह करोड़ों रुपए इन 10 दिनों में खर्चा होना है। तो ये क्या आप लोग जब तक हरकत में नहीं आगे फिर हम अब पानी पिला देंगे। मुहर्रम में पानी भी तो पिलाते हैं यार, पानी पीना और सब्र करना और दिन सीखना, जो खाना भी चाहिए तो जेब में हाथ डालो। ये तरगीब के लिए अर्ज कर रहा हूँ, कोई आप पर लाजिम नहीं है कि आप दें ही दें।
देना आपके लिए सादत है, अब नहीं देंगे तो बाहर से कहीं से पकड़ लेंगे पैसे। तो नाजरीन भी हैं, वो भी इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ उम्मीद है कि हिम्मत करेंगे और ताउन करेंगे। और जो आए हैं ज़रा वो बोलते हैं अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि यार हम आए हैं, कहीं भी जाते हैं तो अपने पल्ले से ही खाते हैं ना यार। तो यहाँ भी, यहाँ तो देना है, खाना भले है लेकिन इतना देना है कि हमारे पैसों से दूसरे भी खाएं, कि हमारी आखिरत बनेगी इंशाअल्लाह। हिम्मत करें इंशाअल्लाह। ज़कात नहीं देनी है, ज़कात वगैरह नहीं हो इसमें दी जाती, साफ पैसा। बाज़ों के नियाजों के अकाउंट होते हैं, उसका पैसा वैसे ही पॉकेट मनी दे सकते हैं। नाबालिग बच्चा अपनी जाती रकम नहीं दे सकता। माशाल्लाह, एक और शख्सियत ने 10 लाख रुपए की हाजी याफुर भाई को नियत लिखवा दी है। 20 लाख जी जी, तकरीबन एक दिहाड़ी हो गई, एक दिन हो गया। अपना तो ये 11वीं रात को भी होता है, 10 की पूरा दिन भी धूम होती है यहाँ पर, और 11वीं रात भी मदनी मुज़ाकरा होता है। अपने को कहाँ जाना होता है, ये ढोल बजाते हैं लोग, उछल कूद मचाते हैं, इनमें हमारा तो कोई हिस्सा है ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए, इनका तमाशा भी नहीं देखना है हमको। हम मस्जिद वाले लोग हैं, नमाजें पढ़नी है। इमाम अली मकाम जो हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु सजदे में सर कटाएं, और इनके मानने का दावा करने वाले यार रोडों पे ढोल बजाएं, इनको पता नहीं हो क्या जाता है। तुम्हारे वालिद साहब की बरसी हो, दादा जान की बरसी हो, क्या ढोल बजा कर कोई आ जाएगा? ढोल पहनकर दादा जान की बरसी में चलो, और ढोल बजा रहे हो, फुदक रहे हैं, उछल रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, और लाठियां लेकर मार के भगा देंगे आपको। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे जिन्होंने सजदे में सर कटाया, उनकी याद ढोल बजा कर मना रहे हो यार, और उछल कूद कर रहे हो। अकलें कहाँ है तुम्हारी यार? आ जाओ, तौबा करो, फैज़ान मदीना में आ जाओ। इंशाअल्लाह मस्जिद भी आपको सिखाएंगे कि किस तरह मतलब यौम शहादत मनाया जाता है। इस तरह थोड़ी मनाया जाता है जिस तरह आज ही है, कौम पैदल अक्ल से पैदल होकर रोडों पे निकल कर मना रही होती है। इनको नहीं देखा करें यार, देख कर इनका हौसला बढ़ता है। अगर इन ढोल बजाने वाले को अकेला कर देंगे ना, ये खुद ही इसकी नाक कट जाएगी यार, कोई देखता ही नहीं मेरे को, छोड़ो यार ढोल को छोड़ो। तो हम देख देख के और हैरत से देखते हैं, तो कोई प्यासी नजरों से देखता है इनको, इनकी हौसला अफजाई होती है देखने से हमारे। और हदीस पाक को पढ़ो ना यार, कि जो जिस कौम का मजमा बढ़ाए, बन कसर सवात कौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम के मजमे को बढ़ाता है वो उन्हीं में से है। जो जिस कौम का मजमा बढ़ाए वो उन्हीं में से। तो ये जब देखने जो जाएगा, ये भी इसी कौम का कहलाएगा कि इनका मजमा बढ़ा रहा है, इजाफा कर रहा है इनमें, इनका तो बाइकाट होना चाहिए बिल्कुल। यानी कि उधर से गुजरना भी नहीं है। जहाँ ऐसा हो रहा हो, ढोल ढमक के बज रहे हो, या इसी तरह के जो भी वाहियात खुराफात तरह तरह के हो रहे होते हैं, तो अपना इसमें काम नहीं है। हम लोग मुहिब्बान सहाबा वाले बैत, इन चीज़ों पर हमारा कोई मतलब यानी कि वो हिस्सा नहीं होता। हम नमाजों वाले, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत करने वाले, सुन्नतों पर अमल करने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे लोग हैं, और ऐसे ही बन के हमें जिंदगियां गुजारनी है इंशाअल्लाहुल करीम। माशाल्लाह, इसमें हमारे याफुर भाई ने तो हाथों हाथ अपनी तरकीब रखी, और मज़ीद भी इन्होंने हदफ लिया है कि इंशाअल्लाह और मज़ीद शख्सियात से भी राब्ते करेंगे। तो खाली आज याफुरी करेंगे? जी, अभी मैं यही चाह रहा था कि आपकी तरफ से अगर थोड़ा सा ये पैगाम जैसे जा ही रहा है तो एक रुकने शुरा और भी तो आए हुए हैं यार, इतने सारों को लेकर, ये भी पावरफुल है वैसे, पावरफुल है। अभी याफुर हट जाओ तुम यार, इनको हरकत में आने दो। देखो अब क्या ऐलान होता है। तो दीगर भी हमारे आशिकाने साहबा वाले बैत जो इस मामले में दिखा भी दिया स्क्रीन पर रुकने शुरा को, मैंने नाम नहीं लिया था, पर्दा रखा था यार कि ना कर सके तो ये तो बेचारा गरीबड़ा, इसको बार बार दिखा रहे हो। मैं गरीबड़ा जरूर है, लेकिन इनके अभी तो अब इनके अपना फंड है ना, सरदार फैसलाबाद की मस्जिद में वो भी धूम मची होती होगी, वहां भी लंगर रज़विया की। लेकिन यहाँ अगर इनके शहर वाले भी मदद करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये भी इन्हीं की मातहत है ना, पूरा पाकिस्तान इनके पास निगरान पाक है, या पाक से मुराद निगरान पाकिस्तान है।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो मदनी चैनल के नाजरीन, ये अकाउंट नंबर आप देख रहे हैं, इनको अगर पिक्चर इसकी ले ली जाए और आप इस अकाउंट नंबर्स में लंगर रज़विया के लिए आप इंशाअल्लाह करीम अगर ये डोनेशन देंगे तो ये लंगर रज़विया में आपको जिस तरह अमीर हुसैन ने फरमाया है कि पूरा साल ही आशिकान रसूल की यहाँ आमद होती है और माशाअल्लाह एक सीखने सिखाने का सिलसिला जारी रहता है। और यहाँ जो मौजूद हैं इनके लिए यहाँ बॉक्सेस भी जगह जगह लगे हैं, यहाँ पर भी डोनेशन सेल होता है। तो ये चादरें करके हमारे यहाँ जमा करने का जो सिलसिला है वो यहाँ हम नहीं करते, यहाँ डोनेशन बॉक्सेस रखे हुए हैं, आप अपना चंदा वगैरह उसमें डाल सकते हैं या डोनेशन सेल पर जाकर जो है वो आप जमा कराएं और रसीद हासिल करें। ऑनलाइन भी अगर आप जमा कराना चाहें इन अकाउंट नंबर्स पर, आप ऑनलाइन भी लंगर रज़विया में अपना जमा करा सकते हैं। माशाअल्लाह, मरहबा। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, सबका भला सबकी खैर। लेकिन जाहिर है कि जो देगा उसका भला ज्यादा होना समझ में आता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। 3 मरतबा जिसने पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े उसकी खताएं मिटा दी जाती है। और जो मजलिस खैर और मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोल लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे के इख्तिताम पर नाजरीन से 3 सवालात किए जाते हैं। 6 जुलाई 2024 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र एज कितनी हुई? जवाब 63 साल। सवाल नंबर 2, दिलों के ज़ंग को दूर करने वाली कोई एक चीज़ बताइए। जवाब कसरत से तिलावत करना, मौत को याद करना। सवाल नंबर 3, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत कितने साल का था? जवाब 10 साल। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: बिनते अब्दुल गनी अत्तारिया हैदराबाद सिंध, बिनते गुलजार हुसैन लांडी कराची, अली रज़ा सादिकाबाद रहीमियार ख़ान, मोहम्मद बिलाल शहजाद बिन मोहम्मद हनीफ़ टंडो आदम, बिनते अजहर अत्तारिया भलवाल, गौस बख्श बिन नियाज़ अली जंगीपुर जैकबाबाद, बिनते नदीम अहमद अत्तारिया इस्लामाबाद,
ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرعہ اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمد بلال شہزاد بن محمد حنیف ٹنڈو آدم، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، وہ کون خوش نصیب ہیں کہ معراج کے دوران پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنے آگے آگے ان کے قدموں کی آواز سنی؟ سوال نمبر 2، جنت کا گھر دارالفرح کس کو ملے گا؟ سوال نمبر 3، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آج 1 محرم الحرام ہے، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس مناسبت سے کئی مقامات پر فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ 24 ذی الحجہ اور 26 ذی الحجہ الحرام امیر اہل سنت کی بڑی بہنوں کی سالانہ برسی ہوتی ہے۔ اس موقع پر مدارس المدینہ میں فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا گیا، اصال ثواب کا اہتمام کیا گیا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الندم توبۃ، گناہ پر نادم ہونا ہی توبہ ہے۔ دعوت اسلامی کے مدرسۃ مدینہ کراچی سٹی میں قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی 2 ہمشیرہ کی ایصال ثواب کا سلسلہ ہوا ہے۔ آئیے کچھ مناظر دیکھتے ہیں۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب نزع کا وقت آئے دیدار عطا کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے محرم شریف میں نفلی روزے رکھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی اور کثیر تعداد میں ہمیں اس کی نیتیں بھی موصول ہوئی ہیں۔ اسلامی بہنوں کی تعداد 10 روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 509، اسلامی بہنوں کی تعداد 500، 5 روزے رکھنے والوں کی نیتیں 1123، اسلامی بہنوں کی تعداد 1230، 2 روزے رکھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں میں 2716 اور اسلامی بہنوں کی تعداد 5000، کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 4348، اسلامی بہنوں کی تعداد 6730 اور ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی نیتیں 11078۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔